So very good morning to all. I welcome all the guests present here. So today I'm going to say something about the mind and the memory. So everywhere present here is aware of the mind and the memory skills. A memory of the human brain has a capacity of more than 2.5 gigabytes. Brain can memorize a complete set of encyclopedias and a dozen of languages and many more. But we are unable to remember so. Even we are unable to remember the things in our day-to-day life. People who are skilled in their memory are often known as knowledgeable, competent, and smart. So imagine how could you feel if you could remember all the information in your day-to-day life on your fingertips? So today we have an opportunity for you all present here to know how you can stop struggling with your memory and smartly start taking the control of your memory. For this we have among us Mr. Kumar Rajiv. Sir is a memory specialist with his name being registered with 3 records in the India Book of Records, 2 records in the Limca Book of Records, the records in the India Star Book of Records, the Guinness Book of Records, and many more. He is the first to memorize the exact population with their capitals of 197 countries of the world, the exact atomic masses of 118 periodic tables, 1200 phone numbers, the birth dates of 1500 famous personalities of India, 1000 digits of exact pi values, 16-point data of India states, 16-point data I mean to say about the name, capital, longitude, latitude, CM, party, date of birth, the population, area, number of districts, MPs and MLAs. So sir is a human memory specialist who is mastered with certain Greek and the Egyptian techniques with which he is able to memorize anything in the world. And he can make anybody interested to learn to make it learn very easily. So sir, I welcome you please on the stage, and I request Dr. Sood to please felicitate sir and say a few words. Thank you, Dr. Vibhu. Today is a very blessed day. My dear students of first year and other classes, new entrants and faculty members, that our worthy Vice President Dr. Ramesh Arya, who is a medical doctor who is double MD and who was the founder principal of medical college, Government Medical College Jammu, and he worked in AIMS Delhi, PGI Rohtak, and in Middle East, America, Australia, and very many other countries. And he is our guide. For me, he is like a father figure and a mentor, and we always seek his blessings. That is always full of blessings, shower of blessings, especially on us, especially on this institute. And he is among us to bless us. And when I told him about Professor Kumar Rajiv, he readily wanted to come and listen him in this lecture with me, because last session also we invited Professor Kumar Rajiv, and as we were told that he is a man with miracles, a miraculous man, and so many wonderful abilities related with the memory and IQ. So we are very lucky here that he is here with us. Both of the great personalities, dignitaries, one is a pioneer person into the medical profession, another pioneer person into the intellect, here with us to bless us and to share with their word of wisdom. And I again take this opportunity to welcome and to thank our worthy President Dr. Ramesh Arya and Professor Kumar Rajiv, who is head of the physics department in our sister college, DAV College, Jalandhar.
and without any delay between you and him, I will request Dr. Mahesh Arya to please felicitate Professor Kumar Azim on the stage. Please. आइए सर, आप आइए। आप सर आइए। मुझे करना चाहिए इनको। वो बाद में Such a learned man. This is tradition. So without any further delay, I will request Professor Kumar Rajiv to take the stage, and then after his lecture, I will request our the Vice President Dr. Ramesh Arya to bless us with his words and to comment on this lecture. Thank you. Hello. Hello. On it. हेलो हेलो माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइक यहाँ पे जाएगा या ये देखिए। नहीं, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर नहीं, मैं आई विल बी बाउंड क्योंकि ये वायर है ना, वायरलेस कॉर्डलेस चाहिए था मुझे। नहीं सर, this is Hello. for recording your lecture. तो फिर मैं फ्री फील नहीं करूँगा। ठीक है, इट्स ओके सर। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इतने बच्चों से तो मैं वैसे इंटरेक्ट कर लेता हूँ। I want callers as it is conveniently available. It's not problem. I think I am audible to all of you. Yes, sir. Very good morning to all of you. So, आप लोगों की आजकल चल रही है induction. I am so grateful to Principal Dr. Sanjeev Sood ji for inviting me to this institute so that I can interact with you. So lucky that today it's a coincidence that Dr. Ramesh Arya, our Vice President, DAV Managing Committee, he is also coincidentally here, and I have got some time to interact with him, and I'm really blessed. Thank you so much, sir, being here. And dear teachers and students. So as a बड़ी elaborate introduction दी गई, ये है वो है, सिर्फ ये है कि आपकी induction चल रही है, तो आपको लगा होगा कि आज सुबह आज पहला लेक्चर है, इससे पहले भी कोई लेक्चर हुआ है? 2 हो चुके हैं, एक और आ गया है ना, एक और आने वाला है। एक और आ गया, एक और आने वाला भी है ना। ऐसे ही होता है। पर आपके दिमाग में आया कुछ ऐसा जब इंट्रोडक्शन दी कि शायद कुछ सीखने को मिलेगा? वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग, शायद वी विल लर्न समथिंग है। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी इंट्रोडक्शन है, आई वाज जस्ट अ प्रोफेसर in the field of physics till 2015. Today, I am a professor also, and I deliver invited talks all over India. Wherever I get a chance, I go to that place. It happened within few months. This all changed. And I'll tell you, my talk is mind and memory. I'll be observing in your eyes, I'll be looking into your eyes and see whether I have to focus on mind or memory. Because memory is just a faculty, and I guarantee you, I have made so many records in Asia book, Limca book, India book, and all of you can do it. With the practice of few weeks, all of you, anybody sitting here, whether he is getting 40% or 80%, doesn't matter. Whether you are 50 or you are 80, anybody can do. I say up to 90 if you are mentally alert, you can have a very good memory. But you will not believe it. You will say, sir to motivate कर रहे होंगे. I am telling you, this is fact. Anybody can do it. मेरे लेक्चर के बिना मैं आपको एक वेबसाइट का रेफरेंस दूंगा, सिर्फ वहां पे चले जाइए और स्टडी करते जाइए। अगर और आप लोग, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन चुके होंगे, राइट? तो यू कैन ऑल्सो डू इट। वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट मेरा ज्यादा फोकस हमेशा माइंड के ऊपर रहता है। माइंड क्या है? हमारे पास एक मोबाइल होता है 10-12 हज़ार का,
and we take so good care of that mobile. क्यों? महंगी चीज़ है भाई, इस्तेमाल करनी उसके बगैर तो जिंदगी नहीं है ना हमारी. अगर मोबाइल घर रह जाए तो समझो जिंदगी नीरस हो जाती है टोटली. Because there are few students जिन्होंने सिर्फ Facebook, WhatsApp करना होता है, कुछ ने लर्न भी करना होता है. There is so much to learn from this also. तो कहने का मतलब क्या है कि हम उस मोबाइल का, अपने गैजेट का इतना ध्यान रखते हैं. ये जो टॉप फ्लोर है, ब्रेन, द हार्डवेयर ऑफ द माइंड, ये हमें फ्री में मिली थी. जब हम पैदा हुए तो हमें फ्री में मिली, और किसी ने हमें बताया नहीं कि दुनिया का मोस्ट वंडरफुल गैजेट आज तक जो हुआ है वो ये है. ये आपकी जिंदगी बना भी सकता है और जिंदगी बिगाड़ भी सकता है, और आपके ऊपर है कि आप इसका इस्तेमाल जानते हो कि नहीं जानते. जैसे मैं कहूँ लैपटॉप 40,000 का भी आता है, 1.5 लाख का भी आता है, 2 लाख का भी आता है. अगर मैंने 2 लाख का ले लिया, मुझे उसका इस्तेमाल ही नहीं आता, then it is of no use. मैं वही टाइपिंग कर रहा हूँ, कुछ पेपर को कर रहा हूँ, पीडीएफ बना रहा हूँ, या कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप, दैट्स इट, नथिंग एल्स. उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा, तो आई हैव वेस्टेड मनी. तो यहाँ पे भी हमें इसका इस्तेमाल नहीं सिखाया गया, और मुझे इसका इस्तेमाल 2015 के बाद पता चला. एंड स्टिल आई एम लकी कि इतनी यंग एज में मुझे पता चल गया. आई एम यंग. अब मेरे ग्रे हेयर पे ना जाना, इंटरनली आई एम यंग. कैसे पता चलेगा? रिसेंटली मैंने ब्लड डोनेट किया तो 3.5 मिनट में पूरा यूनिट भर गया. मैंने स्पेशली पूछा उससे जो ले रहा था, कहता है, मैं कहा अभी एक यंग लड़का डोनेट करके गया, उतना उसने उसका कितनी देर में फिल हुआ? कहता 3.25 मिनट में. मैं कहा इसका क्या मतलब हुआ? कहता इसका मतलब यू आर हेल्दी. मैं यही तो सुनना था आपसे. मेरा 3.5 मिनट में हुआ, इट मींस आई एम यंग एंड हेल्दी, राइट? सो इट्स ऑल हियर. एज इज जस्ट अ नंबर. मैं आपको 20 साल के बुजुर्ग दिखा दूंगा और 80 इयर्स के यंग दिखा दूंगा. आप आयुर्वेदिक के स्टूडेंट्स हो, अगर शार्क टैंक देखते हो तो अभी एक 84 इयर्स के शख्स आयुर्वेदा से उन्होंने 460 करोड़ की कंपनी बनाई अपनी फैमिली को लेके. आपका फ्यूचर दिखा रहा हूँ. आप लोग या तो इसको पढ़ के जॉब करने की सोचोगे, या फिर यू कैन ऑल्सो क्रिएट सच ए कंपनी जिसमें हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सको. थिंक फ्रॉम दैट एंगल एंड यू कैन डू इट. ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि आपका फ्यूचर है. आप इस तरफ सोचो. आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, स्टिल यू कैन डू इट, और बहुत से लोग कर रहे हैं, राइट? तो ब्रीफली अबाउट मी के 2015 से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी है एज अ प्रोफेसर. स्टूडेंट्स के साथ बहुत रैपर्ड बना, पढ़ाने का बहुत मजा आया. फिर मुझे लगा कि आप मेरी सर्विस के 5-7 साल रह गए हैं, बट एक सेकेंड इनिंग क्यों ना सोची जाए. वो क्या है कि एक बचपन में मेरा एक ड्रीम था जिसके ऊपर मुझे याद है, वेरी यंग, बहुत छोटा था, आई यूज्ड टू मेडिटेट ऑन दैट ड्रीम. अब मुझे पता चलता कि मैं मेडिटेट करता था इग्नोरेंस में. तो दैट मीन्स अ लिटिल पैशनेट अबाउट दैट कि ये चीज़ होनी चाहिए, अगर हो तो मज़ा आ जाए, ऐसी लाइफ हो तो वो क्या होता है कि जो आप बड़े होते हैं तो धीरे धीरे आसपास आपके लोग आपको आपकी औकात दिखा देते हैं कि बेटा ज़्यादा नहीं उछलते, आप बस 2 रोटी खानी होती है, ज़्यादा आगे नहीं सोचते, ज़्यादा उछलते नहीं. तो उस चक्कर में फिर वो क्या होता है, आपके जो ड्रीम बचपन के होते हैं ना, वो सप्रेस होते चले जाते हैं और डॉर्मेंट स्टेट में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, बट वो लाइमलाइट में ऊपर कभी नहीं आते, सरफेस पे कभी नहीं आते. बट वो नेचर ने अगर आपको कुछ देना है ना, तो वो सरफेस पे वो ड्रीम आया. तो मैंने कहा क्या मैं उस ड्रीम के ऊपर वर्क कर सकता हूँ? आई एम टेलिंग यू, आपको सिर्फ ड्रीम करना है. मेरा फोकस देखिएगा किस बात पे है. क्या मैं उस चीज को अब अचीव कर सकता हूँ? लेट मी थिंक. क्या कैन आई डू? आज तक मैंने शेयर नहीं किया. एक बहुत बड़े शो में मैं इसको शेयर करूंगा कि वो क्या था जो बचपन में देखा करता था, पर उस रास्ते पे मैं हूँ अभी. आई हैव नॉट अचीव, बट उस रास्ते पे चल पड़ा. तो एक बुक मेरे सामने आई. उस बुक का नाम था मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन. मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन वॉज रिटन बाय मिस्टर जोशुआ फायर. एक ऑथर थे, उन्होंने लिखा था. वो एक रिपोर्टर थे, उनको एक रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा गया यूएसए में, और उन्होंने वहां जाके देखा कि ऐसे बड़े ऑर्डिनरी से लोग, 50-100 लोग बैठे हैं, उनको कुछ डाटा दिया जाता है, वो विद इन सेकेंड्स याद कर लेते हैं और रिप्रोड्यूस करके सुना देते हैं कि ये डाटा आपका था. तो उसको लगा ये कुछ सुपर ह्यूमंस हैं जो मतलब इतनी जल्दी कैसे याद कर सकते हैं. तो उसको क्यूरियोसिटी हुई, तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या है, सिस्टम क्या है इसमें. कहते हैं इसको मेमोरी चैंपियनशिप कहते हैं, और ये मेमोरी का फील्ड है. इसमें स्पेशलाइज्ड मेमोरी एक्सपर्ट्स आते हैं और उनकी चैंपियनशिप होती है. फॉर द फर्स्ट टाइम ही केम टू नो कि ऐसी चैंपियनशिप होती है. फिर उन्होंने और डिटेल पूछी, क्यूरियोसिटी शो की. तो वो 2 लड़के थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर जोशुआ, यू आर सो क्यूरियस, डू यू वांट टू बी वर्ल्ड चैंपियन? तो पहली थॉट में अगर मैं आपको कहूँ कि डू यू वांट टू बी वर्ल्ड चैंपियन, तो ज्यादातर तो स्माइल ही कर देंगे, ऐसे हो रहा है, मैं कहाँ वर्ल्ड चैंपियन बन सकता हूँ. बट उन्होंने कहा कि आप में इतनी क्यूरियोसिटी से आप पूछ रहे हो, यू कैन डू दैट. कहता ओके, आई वांट टू डू इट. कहते देन यू हैव टू फॉलो सर्टेन इंस्ट्रक्शंस फॉर सम टाइम
एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एंड देन, और 2 साल में वो शख्स वर्ल्ड चैंपियन बन गया, जोशुआ फायर। आप उसको स्टडी कर सकते हैं गूगल पे। टुडे ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल ओवर द वर्ल्ड, माय गुरु आल्सो। आई इंटरेक्ट विद हिम ओकेजनली ऑन ईमेल, नेवर मेट हिम, नेवर टॉक्ड ऑन फोन, बट ईमेल करता हूं तो जवाब जरूर आता है। एंड ही इनवाइटेड मी, तो वो शख्स ने मुझे इंस्पायर किया। तो मुझे लगा, उसने लिखा कि ये मेमोरी का फील्ड ऐसा है कि लोगों को विश्वास नहीं है कि आपकी मेमोरी इतनी ज्यादा है और इतनी बढ़िया है, और कि कभी किसी स्टेज पे पूरे वर्ल्ड में कहीं सिखाया भी नहीं जाता कि यू कैन हैव वेरी गुड मेमोरी। कभी सिखाया किसी ने आपको? मुझे भी नहीं सिखाया। तो फिर उन्होंने इसके बाद उस बुक में मुझे जहां भी इतना इंटरेस्ट बना, जब आप ड्रीम करते हो तो नेचर रास्ता दिखाती है। आई एम टेलिंग यू, पाथ खुद चूज नहीं करना, पाथ नहीं चूज करना आपने। देयर इज अ फॉर्मूला इन साइंस, अगर आपने +2 फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। तो हम अगर ए पोजीशन पे हैं, हमें बी पोजीशन पे जाना है ना, तो सिर्फ बी पोजीशन की क्लैरिटी होनी चाहिए और यू शुड हैव पैशन अबाउट दैट बी पोजीशन कि ये मेरा ड्रीम है, यहां जाना है। रास्ता खुद ना चूज करना। लोगों के फेलियर का कारण भी यही है कि लोग रास्ता खुद चूज करते हैं। यू डोंट हैव टू चूज द पाथ। नेचर आपके सामने पाथ लेके आएगी इफ यू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, और वो पाथ पे आप चलना। जहां लॉजिकल माइंड कहे कि ये पाथ आपको मंजिल तक ले जाएगा, उसको नहीं सुनना। जिस पाथ पे आपको मजा आएगा ना, उस पाथ पे चलना, आपको सक्सेस मिलेगी। आपका लॉजिकल माइंड कहेगा तो इसमें नहीं होना, यहां से नहीं अचीव कर सकते, बट लॉजिकल माइंड कहना यू प्लीज शट अप। ये बुक में ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, शट अप। उसमें मैं ये ऐसा ही कोट कर रहा हूं कि आपको अब उस पाथ पे चलना है जहां आपको मजा आए, और वो पाथ आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। क्योंकि मैं देखो, हम 50-60 साल का एक्सपीरियंस, आप लोगों का 15-20 साल का एक्सपीरियंस, छोटे से इंसान, 800 करोड़ की आबादी, इतनी बड़ी दुनिया, हमारे पास कितना तो तजर्बा है कि हम रास्ता भी खुद ढूंढ लेंगे। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस। तो नेचर जो है वो बड़ी पावरफुल है, उसके पास आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने के लिए थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पाथ्स हैं, एंड इट विल थ्रो इन फ्रंट ऑफ यू द इजीएस्ट पाथ। मेरे सामने किताब आई, इंटरेस्ट बन गया, वैसे ही कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, इंटरेस्ट बन गया। मैंने उस पर जो भी मटेरियल मिला उसको ढूंढा और पढ़ता चला गया। फ्यू मंथ्स तो मैं सिर्फ पढ़ता ही रहा, और मेरे बेटे ने फिर एक दिन कहा कि पापा आप आजकल मेमोरी के बारे में बड़े एक्साइटेड है, 100 फोन नंबर क्यों नहीं याद करते? वो दैट वाज द चैलेंज गिवन बाय माय यंगर सन। तो मैंने कहा ट्राई करता हूँ, एंड यू वोंट बिलीव, आज भी मैं वो कर सकता हूँ। 3 दिन में मैंने 100 फोन नंबर याद किया, और फोन नंबर भी ऐसे कि अगर मुझे पर्सन का नाम बताओ तो मैं फोन नंबर बता दूं, अगर फोन के डिजिट बोल दोगे ना 10 तो बता दूंगा ये किसका फोन नंबर है। तो उसने मुझे एक्साइट किया। फिर वाइफ का फोन, बेटे का फोन, दूसरे बेटे का फोन, फिर फोन नंबर खत्म हो गए, फिर शहर के फोन याद कर लिए जहां पे रेस्टोरेंट्स हैं, फिर हॉस्पिटल याद कर लिए, एंड आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिसने 1269 फोन नंबर याद कर लिए। That was all out of excitement। और जब मैं पूछता हूं किसी को मैक्सिमम फोन नंबर कितने याद हैं, तो आप में से भी कोई बता सकता है कितने मैक्सिमम आपको याद होंगे? तो वेरी गुड सर, ऑनेस्टी, दैट्स ऑनेस्टी। यस, एनीबॉडी एल्स? कोई ज्यादा? 5 याद है। और एक बात याद रखिए कि जब आपके पास मोबाइल नहीं होते थे बहुत सारे याद, तो 15-20 तो आम ही याद, फैमिली के सबके याद होते थे। हमने आउटसोर्स कर दी अपनी मेमोरी वी हैव आउटसोर्स टू द गैजेट्स। मोबाइल याद रखेगा, लैपटॉप याद रखेगा, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पढ़ा डॉक्टर सूद, मैंने नाम के ऊपर क्लिक करके डायल कर दिया, नंबर तो मेरी आंखों के सामने आया ही नहीं। अगर नंबर मेरी आंखों के सामने आता और मैं उसको थोड़ा सा कॉन्शियसली देखता तो मुझे याद हो जाता। तो इसलिए डोंट डिपेंड ऑन द गैजेट्स, डेलिबरेटली थोड़ा सा गैजेट की डिपेंडेंसी को छोड़ दीजिए और अपनी मेमोरी को डेवलप होने दीजिए। अदरवाइज आने वाली जनरेशन विदाउट दिस मेमोरी ग्लैंड पैदा होगी, क्योंकि एवोल्यूशन यही है कि जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तेल का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं है ना, अच्छी बात है, नहीं है, बट मेमोरी अगर गई, अगर सपोज हम अभी इमेजिन करें मेमोरी की इंपॉर्टेंस को, हम एकदम से वो गजनी मूवी देखी थी आप सबने ना, उसमें क्या था, वो भूल जाता था सब कुछ। मान लीजिए हम गजनी हो गए अभी राइट नाउ, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन इन दिस रूम? हम सबके ऊपर उसका असर हो गया, किसी ने हमारे ऊपर इफेक्ट कर दिया और हम सब मेमोरी हमारी चली गई, तो क्या होगा यहाँ पे? आई विल बी सिटिंग, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, ये सब कौन है, मैं बैठा कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ भी नहीं पता। तो दैट मीन्स यू आर व्हाट यू हैव मेमोराइज्ड। आपकी पर्सनैलिटी क्या है?
जो आपको याद हुआ अब तक, आपने याद किया हुआ, मैं ये हूँ, ये मेरे मम्मा है, ये मेरे पापा है, मैं ये हूँ, मैं खुश रहने वाला हूँ, ये हंसने वाला, ये रोने वाला, सब कुछ मेमोराइज्ड है। एंड दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी, योर मेमोरी रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। अगर आज आपकी मेमोरी चले जाए, आपकी पर्सनैलिटी गई। दूसरा, आप लोग डॉक्टर्स का कंपैरिजन करें मेमोरी की जरूरत की बात। एक डॉक्टर है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है और वो जो भी उसके पास केस आता है वो मेमोराइज कर लेता है, राइट? उसके केस दिमाग में बैठ जाता है। दूसरा है, उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, वो हर डेटा जो है वो कंप्यूटर में डाल रहा है और मेमोरी अच्छी नहीं है। जब कभी इमरजेंसी आएगी तो जो डेटा ब्रेन में होगा उसी को एनालाइज किया जाएगा। ब्रेन इज नॉट कनेक्टेड टू लैपटॉप। Who will become the better professional? Who has got a better memory? Who will become a better teacher? Who has got a better memory? So memory का अच्छा होना, और अगर आज कोई भी आप सक्सेसफुल इंसान देखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट उसकी मेमोरी अच्छी जरूर होगी। डॉक्टर साहब बैठे हैं मेरे सामने, मैं अब बात नहीं कर, बट आई नो कि इनकी मेमोरी, इन्होंने बड़े ऑनेस्टली कहा तो, बट जो भी बंदा जिंदगी में राइज किया है बाय डिफॉल्ट उसकी मेमोरी अच्छी होती ही है। और अगर अच्छी नहीं है तो रोना नहीं है, आज के बाद आप भी अच्छी कर सकोगे। मैं एक गारंटी देता हूं आपको, अपने क्लास में परसेंटेज बढ़ाने का शौक है या ज्यादा पढ़ने का शौक है? अगर ऐसा हो जाए कि आपके स्टडी आवर्स कम हो जाए और परसेंटेज बढ़ जाए, तो isn't it a good idea? कौन किसको किसको ये पसंद है? जस्ट रेज योर हैंड। बाकियों के लिए क्या है कि बाकी जो है वो पढ़ना चाहते हैं, नंबर नहीं चाहते। एक्चुअली कहीं ना कहीं एक डिसीजन जरूर बनाया करो, मेक इट ए हैबिट। जब भी कुछ पूछा जाए इधर दिस वे और दिस वे, जरूर कहीं ना कहीं हाथ खड़ा किया करो। अब मैं इससे पहले कि आपको लेक्चर के बारे में डिसाइड करूं कि मैं किस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं। मैं स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में रखता हूं। दोज हु हैव अ वेरी 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 गुड मेमोरी, एक कैटेगरी वो होगी। दूसरी जिनकी एवरेज मेमोरी है, अच्छी चल रही है। और तीसरी जो वाकई रोते रहते हैं, बहुत पुअर मेमोरी, मैंने तो याद ही कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं याद है ना, एक वो मेमोरी है। अब लेट मी फाइंड आउट कि किस कैटेगरी में हम हैं। सबसे पहले जिनकी बहुत ही पुअर है, जिनको पता है ऑनेस्टली कि बहुत पुअर मेमोरी है, वो हाथ खड़ा करें। ओके, वेरी गुड, ऑनेस्ट है। और अब मिडल वाले आए, मिडल वाले, मिडल एंड ओके, वेरी गुड, काफी सारे हाथ खड़े हुए। तीसरी कैटेगरी जिनकी बहुत अच्छी मेमोरी है, वो हाथ खड़ा करें। कोई तो होगा, एक है। मे आई नो योर नेम जेंटलमैन? Atikur Rahman, very good. Clap for him. I'll tell you why should we clap? Why should we clap for him? Very good. Sit down. Keep it up. आपकी मेमोरी देखिए, मैं आपको इसलिए क्लैप क्यों करवाया कि ये कहना सबके बीच में खड़े होके कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं। बड़ी बात है। और आप सब ने क्या किया, ये एक्सरसाइज का पर्पस क्या था आपसे पूछने का? आप सब ने क्या किया? आपने अपने माइंड को एक सिग्नल दिया है आज कि मेरी मेमोरी एवरेज है, और किसी ने सिग्नल दिया है मेरी मेमोरी बहुत पुअर है। अब ये यहाँ पे स्टोर हो गया। अब जिस दिन आप कहीं कीज रख के कोई चीज रख के भूलोगे ना, या पढ़ने बैठोगे, तो ये कहेगा उस दिन आपने हाथ खड़ा किया था ना, आप ढूंढ के दिखाओ चाबी कहां। क्योंकि हम लोग खुद ही अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक कि हम अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग खुद करते हैं, रोज करते हैं, 24 घंटे करते हैं हम लोग। और जब हमने ये कह दिया कि मेरी मेमोरी एवरेज है, बोले कि नहीं बोले, बस इतना ही काफी था। हाथ खड़ा हुआ, सिग्नल चला गया, मेमोरी एवरेज है। नाउ यू कैन नॉट हैव गुड मेमोरी। नाउ व्हाट टू डू? इसको रिवर्स कैसे करना है? रिवर्स करने का तरीका यह है कि आज के बाद, चलिए एक और उससे भी पहले एक और एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट्स योर नेम? दीक्षा, प्लीज सिट डाउन। चलिए, दीक्षा कॉलेज आई, कुछ उसके फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं इसके साथ प्रैंक करते हैं हम, हैं? एक इसकी फ्रेंड आती है आगे, कहती दीक्षा आर यू ऑलराइट? ऐसे बड़ी नेचुरल है, आर यू ऑलराइट? कहती हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे क्या हुआ? दूसरी 2 मिनट बाद आती, क्या हुआ तुझे? वो थोड़ा सा घबरा जाएगी, क्या मुझे क्या हुआ? मैं ठीक ठाक, मैं तो बिल्कुल फ्रेश आई। तीसरी आके हाथ ही पकड़ लेती, तेरे को फीवर तो नहीं हुआ? चौथी आके कहती है कि तेरा तो आंखें पीली लग रही, मुझे गड़बड़ है, क्या हुआ है? अब मैं आपको गारंटी करता हूं ऐसे 5 अच्छे एक्टर्स इसके फ्रेंड अगर आके कह देंगे ना, दोपहर को थर्मामीटर लगा देना इसको टेम्परेचर होगा। और नॉट ओनली दीक्षा, किसी को भी आप करके देख लीजिए। तो इसका मतलब, ये कहने का मतलब क्या था मेरा? बट मैंने अभी दीक्षा के लिए नेगेटिव बोला, साथ ही मैं पॉजिटिव कर दूं, दीक्षा यू वेरी हेल्दी एंड आई विश यू वेरी गुड हेल्थ। नेगेटिव वर्ड कभी छोड़ना ही नहीं हमने, है ना? तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स किसी के ऊपर
फिजिकल चेंजेस ला सकते हैं, तो क्या पॉजिटिव वर्ड्स वर्क नहीं करेंगे? और आपकी लाइफ में ऐसे कितने को लोग हैं जो आपको सुबह शाम एनकरेज करते हैं कि यू आर ग्रेट, तुम छा जाओगे, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम जिंदगी में बहुत बड़ा कितने को लोगों ने आज तक आपको कहा? मिलना एक भी नहीं है. वी आर लिविंग इन दिस नेगेटिव वर्ल्ड. नोबडी एनकरेजेस एनीबॉडी. तो इसलिए अगर कोई नहीं आपके लिए बोलता तो हम खुद तो बोल सकते हैं ना. देयर इज अ कंप्लीट बुक, व्हाट टू टॉक व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ. ये हेडिंग ही है उस बुक का, व्हाट टू टॉक व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ. जब आप अपने से बात करो तो क्या बात करनी चाहिए, उसके लिए एक टेक्निक है कि सुबह जब आप उठते हैं, तैयार होते हैं, आज जब तैयार हुए थे, कमरे में मिरर लगा हुआ है, बार बार हम निकलते हैं इधर से, कोई पगड़ी अपने थोड़ी सी सेट करके, जाते जाते एक बार फिर सेट कर लो, फिर थोड़े बाल सेट करते हैं, 3-4 बार, 5-6 बार. क्यों? वी आर लुकिंग गुड. उस टाइम पे अगर आप मिरर के सामने खड़े हुए और अपनी आंखों में आंखें डालें, अपनी आंखों में आंखें डालना बहुत पावरफुल चीज है. अपना इमेज नजर आ रहा है, आंखों में आंखें डालिए एंड से आई हैव गॉट अ वेरी गुड मेमोरी. ये नहीं कि एक बच्चा जैसे पोएम पढ़ता है, उसको मतलब नहीं पता होता, बोली जा रहा है. नो, आई हैव गॉट अ वेरी गुड मेमोरी. मेरी मेमोरी दिन ब दिन इंप्रूव होती जा रही. मैं जो भी पढ़ता हूं एकदम से याद हो जाता है. अब इसमें वो इमोशन, वो फीलिंग्स डालने की जरूरत है. यू हैव टू बी अ वेरी गुड एक्टर. यहां तो रूम में ही एक्टर बनना ना, हमने स्टेज पे तो कुछ नहीं करना. तो वो इमोशन जब पहले दिन तो आप हंसोगे कि आई हैव गॉट अ वेरी गुड मेमोरी, मेरी मुझे याद ही कुछ नहीं रहता, मैं कहीं, बट कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग. रेपिटेशन इज द वे जिसमें आप अपने प्रोग्राम को चेंज करते हो. तो अगर आपको हेल्थ इशू है, आई एम वेरी हेल्दी, मेरी हेल्थ दिन ब दिन इंप्रूव हो रही है. मैं जब बोलता हूं ना मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आई फील ऑल्सो, अंदर से मुझे फीलिंग आती है, यस आई एम हेल्दी. और ऐसे ऐसे आपके सामने वो प्रूफ्स भी आने शुरू हो जाते हैं कि यस यू आर हेल्दी. जैसे मैंने अभी आपको ब्लड डोनेशन की बात की, से आई एम वेरी हेल्दी. और 75% आप सब नोज साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, खुद क्रिएट की हुई है अपनी प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम तो आपकी हो गई. तो अगर आपको वेल्थ चाहिए तो से आई एम वेरी वेल्दी, माय फाइनेंसेस आर इंप्रूविंग डे बाय डे. एंड मेमोरी आपकी 20 से 25% सिर्फ इस एक टेक्निक से ही हो जाएगी. इफ यू स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव. आप सारे दिन में क्या बोलते हो, अपने वर्ड्स को चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, और सक्सेसफुल लोग पता कितने हैं, जितने 2% लोग इस दुनिया में वो हैं जो 98% वेल्थ उनके पास है, और 98% लोग 800 करोड़ में से जो सिर्फ 2% वेल्थ पे सर्वाइव ही करते हैं बस. उनमें फर्क क्या है? उनमें फर्क यही है कि वो अपने वर्ड्स पे, अपनी थॉट्स पे, अपनी इमोशंस पे, हर चीज पे चेक रखते हैं. ऐसे नहीं जो मर्जी बोल दिया, हाय मेरी तो सेहत ही बड़ी खराब है, मैंने तो रब ने कुछ याद ही नहीं रहता, मेरी तो मेमोरी बड़ी माड़ी थी. दे से इट सो इमोशनली, इतने दिल से बोलते हैं, वो वर्क करता है. और जब उनको कहा जाए कि बोलिए आई एम वेरी हेल्दी, वो इमोशंस नहीं डाल पाते. आई एम वेरी हेल्दी, नहीं हेल्दी होती तो मैं कितने हैं. सो दिस इज द चेंज विच यू हैव टू ब्रिंग. अपने अंदर चेंज लाइए, और कल को आप पेशेंट से डील करेंगे तो वहां पे भी इस चीज को इंसिस्ट कीजिए कि ऐसा नेगेटिव नहीं बोलना. वी हैव टू स्पीक पॉजिटिव. हमेशा पॉजिटिव बोलिए कि आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी वेल्दी, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. देखिए अगर आप यहाँ पे आए हैं और अभी तक आपने +2 किया है, जो टीचर ने पढ़ाया आपको समझ आया है, और आपकी यहाँ पे एडमिशन हुई है, हाथ पैर चलते हैं, तो यू आर ए कंप्लीट पैकेज. इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए. आप कंप्लेंट नहीं करना, हाय मेरी कितनी हाइट ज्यादा होती ना तो मैं फटे चक देना, मेरा थोड़ा सा रंग गोरा होता तो मैं ऐ कर देना सीगा. जो है कंप्लीट पैकेज, उसके ऊपर ध्यान नहीं है. और जो नहीं है उसकी तरफ, वो नहीं है, नहीं ध्यान कहां पे है, किसी को ब्लेम भी तो करना है. मुझे पता है मेरा सेल्फ इमेज लो है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ब्लेम किसको करूंगा, मेरी किस्मत ही खराब लिखी, ब्लेम उसको करना, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी. सो स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इट. नो, क्यों जरूरत है इसकी? एक जो बुक है उसका नाम है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय डॉक्टर ब्रूस लिप्टन. उन्होंने बुक लिखी है, उसमें वो लिखते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले 7 इयर्स वो डाउनलोडिंग स्टेज में होता है. जैसे उसके पास हार्डवेयर है पर अंदर सॉफ्टवेयर कोई नहीं है, एक सर्वाइवल सॉफ्टवेयर है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है. अब जब वो पहले 7 साल सिर्फ सुनता है पेरेंट्स से, रिलेटिव्स, घर का कल्चर, टीवी, जो पढ़ा जाता है, जो सिखाया जाता है, स्कूल, इस पे वो डाउनलोड करता जाता है. एंड 7 इयर्स के बाद उसका प्रोग्राम बिल्कुल तैयार हो जाता है. अब आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने पहली बार पढ़ा तो आई वाज शॉक्ड कि वो जो प्रोग्राम आपका पहले 7 साल का था ना, वो आपकी लाइफ को 95% तक आपको कंट्रोल करता हो. 95% आप जो भी डिसीजन लोगे ना, वो प्रोग्राम से ही आएगा. आपको लगता है मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, नहीं, वो प्रोग्राम आपकी जिंदगी को गवर्न कर रहा है.
तो 5% चांसेस हैं कि आप जिस कैटेगरी से आए हो वहां से बाहर निकल के जिंदगी में राइज करोगे, 95% चांसेस आप उसी कैटेगरी में रहोगे। कहने का मतलब है कि 100 पीपल है, 95 आपको अपोज कर रहे हैं और 5 आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जीतने की संभावना किसकी है? हु विल विन? यू नो दैट 95% वाला ही जीतेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो प्रोग्राम है जो बचपन में बन गया था, अब आप जिंदगी में राइज करना चाहते हैं। बहुत से लोग एक्सटर्नली हार्ड वर्क करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते, देन दे ब्लेम डेस्टिनी। और डेस्टिनी के बारे में बहुत से गुरुज को सुना है, वो क्या कहते हैं? डेस्टिनी इज दैट वर्ड, इट इज द वर्ड विच इज कॉइन्ड बाय द लेजिएस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। अगर डेस्टिनी आपकी लिख के देनी थी तो फिर ये साथ में ब्रेन देने की जरूरत नहीं थी, सारा रजिस्टर पे लिखा हुआ था, ये करना वो करना। आपको ये ब्रेन दिया गया, आप उस सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं, आप उस प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। उस प्रोग्राम को चेंज क्यों करना है? अगर आपके पास कोई बड़ा ड्रीम है, इफ यू वांट टू राइज इन द लाइफ, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सब में है इच्छा, पर आपका सेल्फ बिलीफ ही आपको रोकता है कि नहीं। बस वो सेल्फ बिलीफ क्या है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। और जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, मेरे में क्या कमी है? मेरी हाइट कम है, दिमाग मेरा कईयों से अच्छा है। अपने पॉजिटिव ढूंढिए, आप में क्या पॉजिटिव है, एंड देन यू विल सी कि आपका सेल्फ बिलीफ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब 4 साल आप 5 साल यहां पे लगा के निकलेंगे तो आप एक डिफरेंट ही इंसान होंगे। और थोड़ा थोड़ा टाइम रोज लगाइए इस चीज के ऊपर। आपको मैं बताऊं आपकी मेमोरी कितनी बड़ी है। अभी इन्होंने बताया था, उन्होंने गीगाबाइट्स बोला था, बट एक्चुअल में ये एक्साबिट्स में है। एक्साबिट्स क्या होता है? मेगा इज, एनीबॉडी हु कैन टेल मेगा इज 10 raised to power? Yes, absolutely right. मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ये 10 raised to power 18 पे जाता है। और जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी मेमोरी पीटा बिट्स में है, हम उससे ऊपर एक्सा बिट्स में, 2 एक्सा बिट्स। और अगर हम अप्रोक्सीमेट डेटा कैलकुलेट करें तो हमारी मेमोरी एक सुपर कंप्यूटर से 50,000 टाइम्स ज्यादा है। अगर दूसरे लफ्जों में समझे तो हम पूरा का पूरा एनसाइक्लोपीडिया याद कर सकते हैं। हम 12 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से डिग्री ले सकते हैं ग्रेजुएशन की, इतना डेटा हम स्टोर करने के काबिल हैं। हम 3 डजन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, हम पूरी की पूरी डिक्शनरी याद कर सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया मैंने बता ही दिया। इतनी आपके घर जितनी किताबें पढ़ी आप सारी याद कर सकते हो। अब आपको थोड़ी सी आंखें खुलेंगी कि घर में किताबें तो अब आयुर्वेदा की बहुत आने वाली है ना, कई सब्जेक्ट्स की आने वाली हैं, तो वो याद कैसे करनी है? याद का मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन में वो डेटा कैसे जाए। तो उसके सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपके ब्रेन को मैं हार्ड ड्राइव मान लो और उस ब्रेन में एक HD क्वालिटी वीडियो को अपलोड कर दिया जाए, स्टोर कर दिया जाए, तो एक HD क्वालिटी वीडियो कितना तो डेटा ले लेता है? अप्रोक्सीमेटली 2-3 GB तक ले लेता है ना। और वो चलती है मूवी आपकी 2-3 घंटे, है ना। तो अगर आपके ब्रेन में ये वीडियो स्टोर कर दिया जाए तो ये पता कितनी देर चलेगी वीडियो? ये 300 साल तक कंटिन्यूअसली चलेगी, इतनी ज्यादा कैपेसिटी है। ये मैं आपको आपके गैजेट जो आपके पास है जिसकी आप केयर नहीं करते उसके बारे में बता रहा हूं कि दिस इज फैक्ट। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और कुछ लोग तो कहते हैं दिस इज जस्ट डेटा, हमारे ब्रेन की मेमोरी अनलिमिटेड है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा, मेमोरी इतनी है तो जब पढ़ते हैं तो याद क्यों नहीं होता? मेमोरी तो इतनी सारी है। तो हमें मेथड भी तो आना चाहिए ना कि डेटा को स्टोर कैसे करना है। अगर प्रॉपर मेथड यूज करेंगे तो ही डेटा स्टोर होता है ना। ऐसे थोड़ी कि भी यहाँ पे डेटा दिया और वहां चला जाएगा। कुछ लीड कनेक्ट करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर जो है उसको चेंज तो करना पड़ेगा। एंड दैट सॉफ्टवेयर आई अडॉप्टेड, वो मैंने स्टडी किया, जिसके बेस के ऊपर मैंने 1200 फोन नंबर और MPs का डेटा पता नहीं क्या क्या करता चला गया। तो मैं आपको वो बताने नहीं आया कि मैंने क्या क्या किया, मैं आपको क्या दे के जा सकता हूं ताकि आज के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर मेरी बात को ध्यान से सुना आपने 1 घंटा, तो गारंटी करता हूं आपका स्टडी आवर्स हाफ हो जाएंगे और आपकी परसेंटेज 15 से 20% बढ़ जाएगी। इज इट पॉसिबल? कईयों को विश्वास नहीं आया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? 1 घंटे में, 1 घंटे में कुछ नहीं होना। जो मैं आपको बता के जा रहा हूं वो अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने में कुछ हफ्ते लगेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। और हमेशा के लिए कर पाएंगे अगर आप उस चीज को अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या होता है? चेंज। एंड चेंज इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। नोबडी वांट्स टू चेंज। ये जो रेजोल्यूशन लेते हैं ना न्यू ईयर के, मैं इस साल ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करते कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए चेंज चाहिए। और चेंज इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। जो फ्लेक्सिबल लोग हैं वो जिंदगी में राइज करते हैं।
those who are ready to learn. हमेशा स्टूडेंट, हर एज में स्टूडेंट रहते हैं. मैं डॉक्टर साहब को देख रहा हूं, इन्होंने पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ नोट कर रहे हैं, और बहुत रेयर स्टूडेंट हैं. अब इस एज में ये फ्लेक्सिबिलिटी, आपको पता चल गया कि डॉक्टर साहब की सक्सेस का कारण क्या होगा. ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती, ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको जिंदगी में आगे लेके जाते हैं. क्योंकि ही माइट हैव थॉट कि मैं इन चीजों को एक्युमुलेट करूंगा और उनमें से कोई अच्छी चीज अडॉप्ट करूंगा. मैं बड़े फखर से कहता हूं सर कि मैंने ना अपने सब्जेक्ट के अलावा 70-80 किताबें पढ़ी, पर एक भी कंप्लीट नहीं की. ये भी फखर से ही कहता हूं. अब आप सोचोगे ये इसमें क्या फखर है, किताब एक भी कंप्लीट. क्योंकि मैं जब किताब शुरू करता हूं ना, तो एक एक पेज को ऐसे पढ़ता हूं कि इसमें मुझे कुछ ढूंढना है जो मैं अपनी जिंदगी में उतारूं, अप्लाई करूं. वो ढूंढना है. पहले पेज पे मिल जाए, दूसरे पे मिल जाए, तीसरे पे मिल जाए, पहले चैप्टर में मिल जाए. और जब वो मिल गई ना, मैंने किताब बंद कर दी. मुझे पहले वो 21 दिन, आपको पता है 21 दिन लगते हैं कोई हैबिट को डेवलप करने में, फोर्सिबली करनी पड़ती है. 21 दिन से और 66 डेज, दैट इज, उसमें तो बिल्कुल पक्की हो जाती है आपकी हैबिट. तो उसको जिंदगी में उतारिए. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 200-200 किताबें पढ़ी हुई हैं, पर अपनी फैमिली लाइफ और अपनी लाइफ पर्सनल उनकी बिलो एवरेज है. किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता. किताबें पढ़ो चाहे कम, बट उनमें अप्लाई करो अपनी जिंदगी में. माथा टेकना गुरुद्वारे मंदिर में इट्स ओके, बट गुरु कभी नहीं कहते मेरे को आगे माथा टेको. गुरु कहते हैं जो मैंने किया वो करो. अब वो करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो करने के लिए चेंज होगा नहीं. तो इसलिए कहते इतना ही काफी है, हमने माथा टेक दिया, मेरा ये काम कर देना, मेरा ये काम कर देना, दैट्स इट. वो बनो, गुरु ने जो किया वो करो. दैट इज द फर्स्ट मेथड टू इंक्रीज योर मेमोरी. दैट इज नेचुरल मेथड. 3 मेथड बताऊंगा आपको मेमोरी इंक्रीज करने के. फर्स्ट इज नेचुरल मेथड, जो स्वामी विवेकानंद जी, जिसके कारण आज भी फेमस है. वो एक दिन में 3 किताबें पढ़ लिया करते थे. वो जहां भी घूमने जाते थे, वो जहां लाइब्रेरी मिलती थी उसके पास ही अपनी कोई अकोमोडेशन रख लेते थे. उनके साथ उनके एक दोस्त भी थे. वो अपने दोस्त को कहा करते थे कि जाके किताबें लेके आओ 3. वो जाते थे लाइब्रेरियन से, 3 किताबें इशू करवाते थे. वो पढ़ के अगले दिन वापस करते थे, फिर 3 आ जाती थी. लाइब्रेरियन बहुत परेशान था. कहता आप लोगों ने क्या मजाक बना रखा है, एक दिन में कौन पढ़ सकता है 3 किताबें. वो कहते मैं नहीं पढ़ता है, मेरा एक दोस्त पढ़ता है. उसने कहा मिलवाओ. मिलवाया तो बड़े गुस्से से बोला कि आप क्या एक किताब से पढ़ सकता कोई. कहता दोस्त आप ये पूछो कि कौन से पेज पे किस किताब में क्या लिखा, मैं बताता हूँ आपको. अगर कोई आदमी एक दिन में 3 किताबें पढ़े और ये भी बता दे कि कौन से पेज पे क्या लिखा है, तो वो तो फिर सुपर नेचुरल लगता है. बट दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ही डेवलप. अब ये कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको बहुत कुछ कहा गया होगा कि बेटा नंबर कम आ रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो. पापा ने, मम्मी ने, टीचर ने, किसी ने जरूर कहा, पर बेटे को कभी ये नहीं बताया कि कॉन्सेंट्रेट करो कैसे. सब कह देते हैं कॉन्सेंट्रेट करो. किसी ने मुझे नहीं सिखाया आज तक कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि नॉर्मली मेरे पास पेरेंट्स आते हैं लेक्चर के बाद, वो पूछते हैं कि बच्चा पढ़ता तो बहुत है, नंबर नहीं आते. कारण मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. मैंने आपको बताया कि हमारे माइंड में एक दिन में 70,000 to 90,000 थॉट्स चलते हैं, और दिन में सेकंड कितने होते हैं? 86,400. आप कैलकुलेट कर सकते हो थॉट्स कितने आए? 70,000 to 90,000. इसका मतलब हर सेकंड में एक थॉट आ रही. दैट इज व्हाई वी कॉल इट मंकी माइंड. ये इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता, टिकता नहीं है. जिस बच्चे के नंबर ज्यादा आ रहे हैं ना, वो नेचुरली कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें ये नंबर कम है थॉट्स का. और आप में जिसके नंबर एवरेज आ रहे हैं, उसमें सिर्फ फर्क ये, इंटेलेक्ट का कोई फर्क नहीं है. आई गारंटी मेरे साथ किसी को कुछ टाइम बिता दो और वो पुअर से जीनियस बन जाएगा. उसी को लोग कहना शुरू कर देंगे जीनियस. सिर्फ कंसंट्रेशन का फर्क है. और कंसंट्रेशन क्या है कि आप अगर किताब खोल रहे हो, तो अगर आपका ध्यान किताब की तरफ है, तो आप जो पढ़ोगे याद होता जाएगा. और आप किताब खोल के बैठे हो, कभी ये इधर, कभी ये इधर, कभी ये इधर जा रहा है, तो आप जो पढ़ोगे, आप मेहनत कर रहे हो, यार मैं इतनी देर किताब खोल के बैठा हूं, याद नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन. जब तक डेटा रजिस्टर नहीं होगा, तो तब तक याद कैसे होएगा आपको? द वेरी फर्स्ट स्टेप द ब्रेन वर्क्स, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ डेटा. डेटा रजिस्टर होना चाहिए. अब आपने, बच्चे ने किताब खोल लिया, एफर्ट कर रहा है, तो यहां पे आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, और ये नेचुरल है, आपके अंदर है, पर ये नहीं है कि इसको रिमूव नहीं किया जा सकता. यू नीड टू प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेशन. आप कॉन्सेंट्रेशन पे प्रैक्टिस करोगे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बेटर हो जाएगी. आपको चलना नहीं आता था, चलना सीख लिया ना. साइकिल चलाना नहीं आता, विद प्रैक्टिस सीख लिया. जो भी आज तक आपने किया, विद रेपिटेशन एंड रेपिटेशन एंड रेपिटेशन किया, विद प्रैक्टिस किया, तो ये भी प्रैक्टिस से होगा. ये किसी ने आपको बताया नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है.
कि ये करने से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, उस लेवल पे भी जा सकते हो जहां पे स्वामी जी थे। एक छोटी सी जिंदगी में लाखों किताबें पढ़ सकता बंदा। एंड हम यहां पे क्यों आए इस दुनिया में? टू इवॉल्व। हम यहां दुनिया को मेंड करने नहीं आए, दुनिया को ठीक करने नहीं आए, दुनिया को सुधारने नहीं आए, टू इवॉल्व। और जितनी नॉलेज आपके अंदर जाती जाएगी उतना आप इवॉल्व होते जाओगे। दैट शुड बी योर पर्पस। तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई हैव टोल्ड यू दैट इज कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं आपको इसके ऊपर 2 घंटे कंसंट्रेशन पे लेक्चर दे सकता हूं, बट मेरे पास जितना लिमिटेड टाइम है मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि कंसंट्रेशन के बारे में आपको बता दिया है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है। गो एंड सर्च ऑन गूगल, फाइंड सो मेनी बुक्स आर रिटन ऑन कंसंट्रेशन, देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन कंसंट्रेशन, गो थ्रू देम। क्योंकि ये मेरी दी हुई मोटिवेशन अभी 2-3 घंटे में 1-2 स्पीकर और आए ना, ये खत्म हो जानी है। मेरा नाम भी आपने कल तक भूल जाना कि कोई इंसान आया था यहाँ पे। ये टेम्परेरी मोटिवेशन है। पढ़ना क्यों जरूरी है? कि आपको हमेशा दिमाग में रहे कि यस आई हैव टू इंप्रूव माय कंसंट्रेशन। आप पढ़ते जाओगे, आपको और डेप्थ में नॉलेज होगी, आप उतना ही विश्वास के साथ इसको सर्च करोगे। और जो इंसान सर्च करेगा ना, उसको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। मुझे मिला जवाब, वो किताब के थ्रू वो जवाब मिल गया मुझे, जो मैं ढूंढ रहा था कि क्या मैं अपने ड्रीम को हासिल कर सकता हूँ। सिर्फ ड्रीम पे फोकस किया था। मुझे तो नहीं पता था कि ये किताबें मैं पढ़ूंगा। फिर मैं, मेरे दोस्तों ने कहा आप रिकॉर्ड बनाओ, मुझे पता ही नहीं रिकॉर्ड कैसे बनते हैं। फिर मैंने वहां पे कंपनी को फोन किया, मैं कहा मैं 4 रिकॉर्ड बनाने। कहते किस फील्ड में? मैं कहा मेमोरी में। कहते आप पागल, ऐसे थोड़ी बनते हैं। मैं कहा फिर कैसे बनते हैं? कहते उसके लिए शो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, वहां पे हमारे जजेस आते हैं। अब मैं कहा मैं शो कहां से ऑर्गेनाइज करूं? फिर मैंने रिक्वेस्ट की अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर पूनम सूरी जी से, मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका शो अपने सबसे बड़े स्कूल के ऑडिटोरियम में करवाऊंगा। तो उन्होंने फरीदाबाद में एक मेरे करवाया, वहां पे जजेस आए, तो मेरे 3 रिकॉर्ड बन गए। फिर मुझे शौक चढ़ गया, फिर लिम्का वो। तो इस तरह से मेरी जर्नी बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हुई। पर मुझे आज समझ आती है कि क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि मैंने एक ड्रीम पे फोकस किया था और उसको स्टडी कर रहा था कि कैसे हासिल किया जा सकता है ये ड्रीम। बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं एक मिडिल क्लास ऑर्डिनरी सा प्रोफेसर, मैं कैसे इसको हासिल कर सकता हूँ। जब मेरे अंदर वो ड्रीम था तो नेचर ने रास्ता दे दिया। मुझे नहीं पता था कि कभी मैं मेमोरी के फील्ड में इतना कुछ करूंगा और इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो इट इज दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन स्ट्रेसिंग कि अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए, रास्ते पे ना फोकस करिए। रास्ता आपको नेचर को देने दो, ये ऐसे ही आपके सामने आएगा नेचर रास्ता, और आपको समझ आ जाएगी कि इसमें मैं चलूंगा तो मजा बड़ा आएगा। जैसे मेरे से कोई पूछता है, स्टूडेंट पूछता है सर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी, कौन सी किताब पढ़ो? वहां पे बहुत सारी मेलविनो की है, मेलविनो लीच की है, एक फ्लॉयड की है। मैं उसको कहता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक आता है ना, तीनों किताबें खोलो और तीनों में से पढ़ो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा ना, समझ आएगी और मजा आएगा, वो किताब आपकी है। सारी दुनिया मेलविनो लीच पढ़ती है, मैंने सारी इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लॉयड से पढ़ी है और वो किताब इजीली लाइब्रेरी में अवेलेबल रहती थी, कोई इशू नहीं करवाता। तो मुझे वहां से समझ आई, बाकी सबको मेलविनो से समझ आई। तो व्हाट आई मीन टू से जिसमें मजा आए, जिसमें आप इंजॉय करो। क्योंकि अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे तो आपका प्रोग्राम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आपका प्रोग्राम सपोर्ट नहीं कर रहा तो देयर आर 0 चांसेस कि आप सक्सेसफुल होगे। जोर लगाओगे एक्सटर्नली, इंटरनल प्रोग्राम आपको अपोज कर रहा है, एक्सटर्नली आपने पूरा जोर लगाया हुआ है, आपको पता ही नहीं कि मेरा अपना प्रोग्राम मुझे अपोज कर रहा है, तो यू विल फेल। तो फिर आप कहोगे कि नहीं बड़ी एफर्ट की, बट सक्सेस ना किस्मत वालों के हाथ में होती है। ऐसा नहीं है, कोई किस्मत नहीं है, कोई किस्मत वाला नहीं है। धोनी आज आप देखते हो, तेंदुलकर को देखते हो, या अक्षय को देखते हो, या शाहरुख को देखते हो, तो आप सोचते हैं किस्मत वाले हैं, अमिताभ बच्चन। नहीं, उनके पीछे उनकी एफर्ट देखो, वो हम भूल जाते हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम को, और ये सारे के सारे लोग, ये जो वर्ल्ड पावर है इसको फॉलो करते हैं, ऑल ऑफ देम। कहीं भी पढ़ लो, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव अफर्मेशंस। और दिल से बोलना, यस मेरे, फिर तो नॉर्मली हो जाता है। यस मेरा तो, मैं कोई भी काम करता हूँ ऐसे हो जाता है, बट नेचर ने मुझे ऐसा ब्लेस किया हुआ है कि मैं जो भी करता हूँ एकदम से हो जाता है, जो भी मुझे चाहिए मेरे को एकदम से मिल जाता है। ऐसा कौन बोलता है आप में से? कोई भी नहीं बोलता। आज के बाद बोलना, कुछ भी मुझे चाहिए नेचर अपने आप ही प्रोवाइड कर देती है। इतना ब्लेस्ड हूं मैं ऐसे बोलता हूँ। यस, ऐसा होता है। दैट्स व्हाई सर यू आर ऑन दिस चेयर। ऐसे होता है। अब नेचुरली बोलना शुरू कर दीजिए, नेगेटिव वर्ड्स अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। तो पहला मेथड है कंसंट्रेशन। मैंने जो शुरुआत में एक्सरसाइज की थी वो बता देता हूं। ये इनवर्स काउंटिंग। पहले मैं दीवार, थोड़ा साइलेंट होकर बैठ जाइए अपने रूम में, जहां भी बैठे हैं, जिस भी पोज में बैठे हैं। आंखें बंद करना इसलिए जरूरी होता है कि आप बाहर की डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है, इसलिए आंखें बंद करनी। और वहां पे सामने दीवार पे मैं देखता हूं कि 100 नंबर मुझे नजर आ रहा है। मैं उसको बहुत ही ब्यूटीफाई करता हूं। 1 येलो में है, 0 ब्लू में है, रेड में है, ब्यूटीफाई करता हूं। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं आनी चाहिए,
सिर्फ मुझे मेरा ध्यान 100 पे होना चाहिए। और जो ही थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है इमीडिएटली आई कम टू 99। अब 99 को ब्यूटीफाई करता हूँ, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी मैंने फिक्स नहीं किया। और फिर 99, 98 आप देखिएगा आप 98 तक पहुंच पाते हैं कि नहीं? 100 से 98 भी नहीं पहुंच पाते हम लोग 1 या 2 सेकंड, शुरुआत में ऐसा नहीं होगा। और अगर थॉट आई दोबारा 100 से शुरू करना, फिर एक भी थॉट इधर उधर गई ना, फिर 100 से शुरू कीजिए ऑनेस्टली, और करते जाइए और अपना नंबर बढ़ाते जाइए। दिस इज वन एक्सरसाइज, देयर आर सो मेनी अदर एक्सरसाइजेस जिससे आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। कंसंट्रेशन है क्या? किसी एक थॉट पे या किसी एक ऑब्जेक्ट पे कितनी देर तक आप बिना कोई सोच आए ध्यान रख सकते हो, दैट इज कंसंट्रेशन। और अगर आप किताब खोलोगे, कंसंट्रेशन आपकी बढ़ गई है, किताब खोल ली, आप पढ़ रहे हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज गेटिंग रजिस्टर्ड। आप इस स्टेट तक आ जाओगे कि एक बार किताब पढ़ते हैं आप याद कर लोगे, आपको एकदम से समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो वो लेवल आने में कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, मैं तो कहता हूँ कुछ साल भी लग गए तो यू आर यंग। अगर 5 साल लगते हैं तो बाकी के 50 साल तो बढ़िया बीतने वाले हैं। नेवर फोकस ऑन कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ सीखने को मिल रहा है तो टाइम लगाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई से, मैंने आपको बता दिया कंसंट्रेशन, आई यूज ऑल दीज मेथड, बट आप में से कितने प्रैक्टिस करेंगे? एक की गारंटी है इसमें कोई बैठा जो प्रैक्टिस करेगा इसको, एंड ही विल गेट बेनिफिटेड। दूसरा मेथड है निमोनिक टेक्निक्स, उनको बोलते हैं। निमोनिक टेक्निक्स होती है कोई भी ऐसी टेक्निक जिससे जो आपको याद रखने में मदद करे। जैसे बचपन में आपको डेज ऑफ द मंथ बताए थे, ये जो रेस्ड पार्ट है वो 31 है, फिर 30, फिर 30, 31 जनवरी फरवरी ये कर लिया। फिर विबग्योर आपको कलर बताए गए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर का मेथड। फिर आपको वो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस सिखाई गई, उसमें मुझे याद आज तक बचपन पढ़ी थी, बीबी रॉय गोज बॉम्बे वाया गेट में, उससे याद किया। दीज आर ऑल निमोनिक टेक्निक। एक जैसे कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, 10 ऑर्गन सिस्टम है, उसके लिए एक एब्रिविएशन बनी हुई नाइसर ड्रम्स, नाइसर NICER N से न्यूरो, इंटेग्यूमेंट्री, सर्कुलेटरी, देन E से एंडोक्राइन, देन R से रेस्पिरेटरी, देन आ गया ड्रम्स। अब D से शुरू करो, डाइजेस्टिव, फिर आ गया रिप्रोडक्टिव, एंड U से यूरिनरी, मस्कुलर, स्केलेटल। याद हो गया आपको? एक बार आप नजर डालोगे तो आपको याद। दीज आर ऑल निमोनिक टेक्निक्स। इसके लिए आपको थोड़ा सीखने की जरूरत है कुछ टेक्निक्स को। तो एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आपको आमतौर पे टीचर कहते हैं बेटा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने लगा, ध्यान से सुनिएगा और इसको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और याद रखने की कोशिश करना। मैं आपको उल्टा कह रहा हूं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, बस कैजुअली बैठ के सुनना, याद करने की कोई कोशिश ना करना। ओके, बस वैसे सुन लेना स्टोरी। रेडी? शुड वी स्टार्ट विद द स्टोरी? ना स्टोरी ये है कि अभी हमारा लेक्चर खत्म हुआ, बाहर निकले, बाहर एक स्कैनिंग मशीन लगी हुई है। स्कैनिंग मशीन देखिए आपने सबने, कई तरह की होती है, एक तो मेडिकल वाली है, एक वो जिसमें लगेज रखते हैं और पास होता है, स्टेशन एयरपोर्ट्स पे लगी होती है। दैट स्कैनिंग मशीन इज देयर। अब इसमें आपको अपनी 5 सेंसेस इन्वॉल्व करके देखिए कि कैन यू सी दैट, आपको नजर आ रही इमेजिनेशन में। और उसका अगर आप टच करते हैं तो उसको प्लास्टिक आप फील कर रहे हैं, आपको उसमें जब वो घूम रहा है उसका रोटर तो आवाज आ रही है आपको, सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं। फिर आपके हाथ में एक टाइटन की घड़ी थी, आपने उतारी, मशीन में रख दी, मशीन में से पास होकर वो बाहर निकल आई, आपने अपनी घड़ी उठाई, बाहर एक वैन खड़ी हुई थी, आप उस वैन में जाके बैठे। जो ही आपने वैन का दरवाजा खोला तो आप अंदर से देखते हो इट इज क्रोम व्हाइट, इतनी शाइन कर रही है, क्रोम व्हाइट। आप बहुत ही खुश होते हो, अब वहां बैठ जाते हो। अंदर पड़ा हुआ एक मैंगो, सेंटर में एक मैंगो, आप उसको इमीडिएटली उठाते हो। जो ही आप टच करते हो तो आपको पता चलता है कि ये नेचुरल मैंगो नहीं है, तो आयरन का बना हुआ, आप उसको वापस रख देते हो। अब जो ही आप उसको वापस रखते हो उसमें से कोबरा बाहर निकल आता है, आप एकदम से डर जाते हो, पीछे हो जाते हो और कोबरा बाहर निकल जाता है। आप पीछे हुए तो कोबरा बाहर निकल गया। सामने एक कॉप खड़ा हुआ है, कॉप पुलिस वाला खड़ा, वो नहीं डरता, वो उस कोबरा को उठाता है और साथ में एक सिंक है, उसके अंदर उसके होल में डाल देता है। अब ये स्टोरी मैंने आपको कहा था याद नहीं करनी, फिर भी आपने कर ली, सबने कर ली ना? क्यों? क्योंकि आप लोग ढूंढ रहे थे इस स्टोरी में कोई क्लाइमेक्स आएगा, कुछ होगा। बेसिर पैर की स्टोरी थी और फनी स्टोरी थी, आपको इसलिए याद हो गई, राइट? लेट मी सी अगर आपको याद हो गई। सबसे पहले आप बाहर निकले तो वहां पे क्या लगा हुआ था? उसके अंदर आपने क्या रखा था? उठा के गए तो कहां बैठे? वैन अंदर से कैसी क्या? और उसके अंदर क्या पड़ा था? मैंगो किस चीज का बना था? तो जब आपने रखा तो उसमें से क्या निकला? कोबरा। जब आप साइड पे हुआ तो बाहर, और सामने कौन खड़ा था? तो आपने क्या किया? तो मैंने तो कहा था याद नहीं करना, टीचर आपको याद कराते रहते हैं, आप याद करते नहीं करते। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा फनी वे में प्रोड्यूस की स्टोरी को, इसलिए आपको याद हो गई और आपको पता भी नहीं चला कि आपने पीरियोडिक टेबल की 21 to 30 एलिमेंट्स याद भी कर ली। आपको पता चला किसी को? मैं अभी बता देता हूँ आपने कैसे याद कर ली। 21 स्कैनिंग मशीन थी, 21 पे एलिमेंट है स्कैंडियम,
उसके बाद सेकंड नेक्स्ट आपने टाइटन की घड़ी रखी, 22 इज टाइटेनियम। फिर आप वैन में बैठे, 23 इज वेनेडियम। वो अंदर से क्रोम वाइट थी तो बन गया क्रोमियम। अंदर पड़ा था मैग्नेट मैंगो तो बन गया मैंगनीज, राइट। अंदर से क्या निकला, वो किस चीज का बना था, आयरन। आयरन हो गया 26। उसके बाद कोबरा निकला, कोबरा स्टैंड्स फॉर कोबाल्ट। अब आप साइड पे हट गए तो कोबरा बाहर निकल गया, तो 28 इज निकल। उसके बाद सामने कौन खड़ा था, कॉप, कॉप से कॉपर, 29 इज कॉपर, और उसको उसने सिंक में डाला तो दैट इज जिंक। तो आपको 10 एलिमेंट्स मैंने अभी याद करवा दी। और आप लोग कहते हो मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, आपको ये याद हो गई। तो क्यों याद हो गई, क्योंकि इसको थोड़ा फनी वे में एक टेक्निक से, स्टोरी टेक्निक जिसको कहते हैं, उसके साथ मैंने आपको याद दिलाया। और अगर 20 मिनट मुझे और मिले तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद कराओ। कितनी एलिमेंट्स होती हैं, 118। बस 20-25 मिनट और लगेंगे, बट आई विल नॉट डू दैट, ना ही मेरा वो पर्पस है। मैंने जब फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल याद किया, वो भी मेरे सामने चैलेंज किया था, पापा पीरियोडिक टेबल याद करो, 2 दिन में याद किया था मैंने। तो उसके पीछे पर्पस क्या था, अब क्यूरियोसिटी। उस एज में आई वाज अराउंड 49-50 जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था। तो मुझे सिर्फ क्यूरियोसिटी थी कि मैंने सुना था कि फलाने हमारे टीचर होते थे, उनको पूरा पीरियोडिक टेबल आता है। आई वाज वेरी एक्साइटेड। अच्छा सुनता ही रहे, मिला नहीं कोई शख्स जिसको आता हो। तो मुझे लगा कि जलंधर शहर की आबादी 20 लाख, इसमें 10-15 लोग होंगे जिनको पीरियोडिक टेबल आता है। अगर मैंने सीख लिया तो मैं कम से कम 15 लोगों में आ गया, कुछ बड़ा ऐसा कर लिया जो बाकियों ने नहीं किया। क्या आपके अंदर उतना एंथुसियाज्म है, वो बच्चों वाली एक्साइटमेंट? ये बच्चों में होती है ना, नहीं तो हम तो बड़े हो गए, अब ये चीज, तो बड़े कहां हो गए? एक्साइटमेंट आपके अंदर उतनी रहनी चाहिए। दैट वाज द ओनली रीजन। अदरवाइज मुझे पीरियोडिक टेबल याद करके क्या मिलना? फिजिक्स का टीचर क्लास में जाकर पीरियोडिक टेबल थोड़ी सुनाएगा, है ना। तो ये एक्साइटमेंट आपके अंदर रहनी चाहिए कि मैंने कुछ दुनिया से अलग किया। तो आप आज शाम को जाके गूगल पे पीरियोडिक टेबल की 118 एलिमेंट्स खोल लीजिए। और ये स्टोरी मैंने छोटी सी बता दी। 31 इज गैलियम, गैलियम से बना लो एक आगे गली है। उसके बाद 32 जर्मेनियम है, एक जर्मन बेकरी मैंने रख ली, राइट। 33 इज आर्सेनिक, 4 सैनिक मैंने बाहर खड़े कर दिए। उसके बाद आ गया सेलेनियम, बिल्कुल सामने एक सैलून खड़ा कर दिया। उसके बाद आ गया ब्रोमीन, उसके अंदर ब्रूमिंग चल रही है। इस तरह से स्टोरी बनाते जाइए 2 घंटे में आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है। अब क्यों करना है, कारण मैंने बता दिया। यू शुड हैव एक्साइटमेंट। पूरे कॉलेज में किसी को नहीं याद, आपको आता है। That's the excitement। और ये पीरियोडिक टेबल नहीं मैटर करता, जो आप में कॉन्फिडेंस आता है ना इन चीजों से कि यू आर डिफरेंट, वो कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि पीरियोडिक टेबल हो गया या ये याद कर लिया। अब मैं जब एक शाई सा स्टूडेंट था, शाई, अपने तक लिमिटेड रहने वाला, आज मैं 1200 की गैदरिंग के सामने कैसे खड़ा हो जाता हूं, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज हैं। आपको पता ही नहीं है आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, मौका ही नहीं दिया आपने उन क्वालिटीज को बाहर आने का। आपके अंदर यू आर ए कंप्लीट पैकेज, पर आपको अपने मौका नहीं दिया। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी। सर ने एक शुरू में बात कही थी कि हमें भी कुछ दिक्कत आती है याद करने में, तो आपके पेरेंट्स भी घर पे हैं, आज आप एक मेमोरी टॉक अटेंड कर रहे हो तो उनको भी फायदा होना चाहिए कुछ। उनको घर में ऐसे होता है अक्सर के भूल जाते हैं कोई चीज रख के, और कई घरों में तो सुबह शोर ही पड़ा होता है, मेरी टाई नहीं मिल रही और मेरे शूज नहीं मिल रहे, और ऐसे चल रहा होता है, केओस बचा होता है। डिसऑर्गेनाइज्ड हाउसेज होते हैं थोड़े से वो, है ना, बट वो उसी में एंजॉय करते हैं, ठीक है, इट्स ओके, है ना। तो एक छोटी सी टेक्निक आपको बताता हूं कि इसके बाद यू विल फॉरगेट द फॉरगेटफुलनेस। आप भूलना भूल जाओगे अगर उसको अप्लाई करोगे। उसको मैंने स्टडी किया था, एक बुक है पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ, दिस मोमेंट। बुक का नाम है पावर ऑफ नाउ और उसके ऑथर है एखर्ट टोले। बड़ी फेमस बुक है, आप अगर गूगल पे डालोगे तो पीडीएफ में मिल जाएगी। तो वहां पे उन्होंने इस मोमेंट की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताया कि हम लोग या तो फ्यूचर में जीते हैं या पास्ट में जीते हैं, प्रेजेंट में कभी भी नहीं रहते हम लोग। पास्ट में जब जाते हैं तो जो बुरा हुआ वही याद करते हैं, जो अच्छा हुआ वो नहीं याद करते। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि 4 ऐसे दिन ढूंढिए अपनी लाइफ में, those days which were really wonderful days आपके लिए, उस दिन आप बहुत ही बढ़िया गया, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया या आपको अवार्ड मिला या आप टॉपर हुए या कोई शादी में बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, कुछ ऐसा 4 अच्छे दिन याद कर सकते हैं आप लोग पूरी लाइफ में? याद आ गए? अभी मैं कहूं ना 5 बुरे दिन वो जल्दी याद आ जाए, क्योंकि हमारा फोकस ही हमेशा नेगेटिव डेज पे होता है। तो जो भी 4 अच्छे दिन है ना, ये अभी आपने 1 मिनट में ढूंढ लिए, ऐसे 20-25 दिन याद करके रखो। जो घर के बड़े हैं ना,
उनको बोलो अपनी शादी के वो जो पूरा एपिसोड हुआ था उसको रिकॉल करो, उसको रिकॉल करो, कौन कौन आया था, उसने क्या कपड़े पहने थे, कैसा लग रहा था, ये वो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम पास्ट में जाते हैं तो नेगेटिव डेज के ऊपर नहीं जाना, पॉजिटिव डेज पे फोकस कीजिए कि उस दिन इतना अच्छा हुआ था तो आज भी हो सकता है। हमेशा पास्ट में जाइए पर अपने अच्छे पास्ट में जाइए और नेगेटिव फाइल्स को धीरे धीरे डिलीट कर दीजिए और जिसने आपको कुछ कहा था उसको माफ करते जाइए धीरे धीरे धीरे। फॉरगिव। आपकी पीस ऑफ माइंड आपके हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। वो आपको कुछ कह के चला गया, आप एक हफ्ता डिस्टर्ब हो जाते हो, कोई कुछ कह देता तो वो सो जाता क्योंकि उसकी आदत है, उसको नहीं को फर्क पड़ता, पर आप डिस्टर्ब हो जाते। डोंट बी सो सेंसिटिव, फॉरगिव देम एंड मूव ऑन। और अपने पास्ट में जाओ। अब फ्यूचर में जाना तो कहां जाना है? फ्यूचर में तो देखा ही नहीं किसी ने। जब भी फ्यूचर में जाओ अपने गोल को देखो, गोल की क्लैरिटी करते जाओ धीरे धीरे कि आप क्या चाहते क्या हो। अब ड्रीम के ऊपर फोकस। ड्रीम की डेफिनेशन पता क्या है? ड्रीम इज दैट पैशनेट डिजायर फॉर विच यू हैव अनलिमिटेड एंथुसियाज्म। फॉर विच यू हैव अनलिमिटेड एंथुसियाज्म का मतलब कि मुझे इसके लिए अगर कोई कहे कि आपको 20 फिलॉसफी की किताबें पढ़नी होगी तब आपका गोल हासिल होगा, मैं 40 पढ़ने को तैयार। मुझे कोई कहे कि आपका गोल मिल सकता है, इसके लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ना होगा, मैं आज ही तैयारी शुरू करूंगा। दैट इज कॉल्ड ड्रीम। और ये 2% लोगों के पास है। 98% पीपल आर एमलेस। उनको ये नहीं पता कि मैं यहां डिग्री क्यों करने आ गया हूं और आगे जाके मैंने करना क्या है। देखेंगे, वर्ड इज देखते हैं, डिसाइड कुछ भी नहीं किया हो। तो वो 98% लोग तो वही हैं कि समुद्र से शिप निकल गया, अब उसको पता ही नहीं जाना कहां है, अब वो वहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, उसके आसपास ही घूमेगा। और जिसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है कि ये डेस्टिनेशन है, ये जीपीएस लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में जाना, वो चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज है अपने ड्रीम को फाइंड आउट कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए। उसकी मैं एक मेथड बताता हूं, वॉरेन बफेट ने दिया था कि आपको जो जिंदगी में चाहिए वो कॉपी पे लिखते जाइए। ये चाहिए, ये भी चाहिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी कि ये नहीं चाहिए, इतना कुछ थोड़ी मालूंगा हमें, कंजूसी नहीं करनी। खोल के लिखिए क्या क्या चाहिए, पूरी तरह खोल के। और अपने किसी को दिखानी थोड़ी, हमने कॉपी खुद ही लिखना है, तो अकेले बैठ के भी नहीं खुल के लिख सकते। लिखिए 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 और फिर बाद में ना उसको शॉर्टलिस्ट कीजिए कि इसमें से 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जो मुझे वाकई जिंदगी में चाहिए। बाकी कॉपी को फाड़ के फेंक दीजिए, चाहिए ही नहीं आपको। वो 5 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में, अगर आप उसके लिए वर्क करेंगे ना, वो 5 चीजें ढूंढ ली आपने, तो आप कहां किन हाइट्स की किन बुलंदियों को छुओगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स योर ड्रीम, you have found your dream, you have found your goal, you have found your target. उसके ऊपर वर्क करते करते मैं कहता हूं कि अगर 10 साल भी लग गए तो by that time you will be 30 or 35, but उसके बाद की जिंदगी you cannot imagine. Work on the dream, right? So एक हो गया निमोनिक टेक्निक मैंने बता दी। अब जो टेक्निक बता रहा था कि घर के चीजें रख के भूलते हैं, जो हम कैसे याद रख सकते हैं। कई बार होता है कि गेट को लॉक किया, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, आधे रास्ते जाके याद आया लॉक किया था, दूसरा एकदम से रिएक्ट करता, तेरा काम है, ये थोड़ी कहता कि नहीं किया, तेरा काम तो तुमने करना, वो वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। अब क्या करोगे, या तो घर वापस फोन करके नेबर को पूछोगे जरा चेक करना, वो ना हुआ तो फिर वापस आओगे क्योंकि घर तो खुला नहीं छोड़ सकते। अब ये क्यों भूल गए हम? क्योंकि जब हम लॉक कर रहे थे हमारा माइंड किसी और थॉट पे था, इधर लॉक हो गया और माइंड कहीं और रह गया, रजिस्टर हुआ ही नहीं। अब आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, डेटा यहां स्टोर ही नहीं किया हमने, तो वो रिकॉल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा काम करो, कहीं स्पैक्स रखो, कहीं कोई कॉपी रखो, कोई अपने कपड़े रखो। अब सीजन चेंज हो रहा, आप विंटर के कपड़े अंदर रखोगे, तो जब रखो हर बार 2 सेकंड के लिए उसको देखना जरूर है। 2 सेकंड्स टेक्निक बड़ी पावरफुल है। 2 सेकंड्स लॉक कर रहे हैं, 2 सेकंड उसको देख लिया। गैस स्विच ऑफ किया, 2 सेकंड के लिए उसको देख लिया। स्पैक्स रखे हैं, 2 सेकंड्स के लिए देख लिया। दिस इज पावर ऑफ नाउ, कि उस 2 सेकंड में आप यहीं पे हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, कहीं और नहीं गया, ना फ्यूचर में गया ना पास्ट में गया, इट इज हियर। तो अगर आप ये टेक्निक अपने आप भी सीख लो तो जिंदगी में कभी भी कोई चीज रख के भूलोगे नहीं आप। पीपल विल से यू विल हैव वेरी गुड मेमोरी, राइट? तो ये ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है, हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स हैं। मेरी अपनी वेबसाइट है mindmagica.com, वहां से भी आप इसको सीख सकते हैं। एक मैंने जहां से सबसे ज्यादा सीखा वो आर्ट ऑफ मेमोरी। आर्ट ऑफ मेमोरी एक फोरम है जहां पे वर्ल्ड के मेंटलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियंस, वो उस पे आके अपनी अपनी सजेशंस देते हैं। तो उसको काफी टाइम लगता है, स्टडी करना पड़ता है, फिर बात बनती है, बट बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप उसको फॉलो करें तो सिर्फ उसको ही फॉलो करने से यू कैन बी वर्ल्ड चैंपियन हो सकते हैं आप आने वाले टाइम में, और आप अपने नंबर तो बढ़ा ही लेंगे। अभी मैं उस बात पे नहीं आया कि आपकी स्टडी आवर्स कैसे कम हो गया, अभी उस पॉइंट पे नहीं आया। तो ये एक मेथड हो गया आपका, निमोनिक मेथड इसको बोलते हैं।
मैं आपको कहूं कि मैं अभी के अभी आपको इंडिया के प्रेसिडेंट्स याद दिला दूं, उसके लिए दूसरी टेक्निक है, इसको स्पेशियल मेमोरी बोलते हैं। स्पेशियल मीन स्पेस से रिलेटेड, कि जब भी हम कोई नई चीज याद करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन उस डेटा को एसोसिएट करने की कोशिश करता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसके साथ एसोसिएट करता है। अगर वो एसोसिएट हो गया तो आप उसको रिकॉल कर पाओगे, अगर वो एसोसिएट नहीं किया, हैंगिंग रह गया, तो फिर आप जोर लगाओगे ऐसे रख के, हाँ पढ़ा तो था, वो केबीसी में कहते हैं ना, पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा। डू यू नो, मैंने केबीसी को चैलेंज किया था, न्यूज़पेपर में आई थी पूरी कवरेज। मैंने केबीसी को कहा था कि मैं आपके शो पे आऊंगा, या तो फुल अमाउंट टोटल जो आपका प्राइस अमाउंट है वो लेके जाऊंगा, बीच में क्विट नहीं होगा, या जीरो या मैक्सिमम। तो ये चैलेंज पूरे न्यूज़पेपर में आया था, पर वो मुझे बुलाते नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये बंदा तो खुद ही चैलेंज कर लिया, ये तो ले जाएगा, तो इसकी तो टीआरपी भी नहीं बनेगी, वो उसमें थोड़ा सा टीआरपी स्टोरी बनानी होती है, वो सब नहीं बनेगा। तो मुझे कहा गया कि आप ऑडिशंस में जाओ। मैं कहा नहीं, इतना टाइम नहीं, मेरे पास बहुत सारे और भी काम है। तो अगर उन्होंने बुला लिया तो इट्स ओके, मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए, आई कैन डू इट। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोई भी डेटा हैंगिंग नहीं छोड़ूंगा। वो नहीं होगा कि केबीसी में बैठ के कहूंगा हाँ मैंने पढ़ा तो था, याद नहीं आया। नो, जो पढ़ लिया वो 100% रिकॉल होगा ही होगा। जो पढ़ लिया, जो मेरी नजरों के सामने से गुजर गया। ये इसलिए हुआ कि मैंने 3 दिन में 5 किताबों का डेटा जनरल नॉलेज का याद किया था, सिर्फ 3 दिन में। तो मैंने कहा कि ये 3 दिन में इतना कर लिया, 3 महीने में कितना डेटा किया जा सकता है, आई कैन डू इट। तो इवन सिविल सर्विसेज एग्जाम भी दिया जा सकता है। तो आई एम टेलिंग यू, दीज टेक्निक्स आर वेरी वेरी पावरफुल। बस आपको सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। और तीसरा मेथड जो है, अभी मेरे पास कितना टाइम होगा डॉक्टर? अभी है टाइम ना? तो प्रेसिडेंट्स की बात कर रहा था, फिर मेरे पास टाइम है तो मैं आपको वो प्रेसिडेंट्स के नाम याद दिलाता हूं। देखें, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं अब इस स्पेशल मेमोरी के ऊपर आता हूं कि डेटा को स्पेस में कैसे मैं हैंग करता हूं, और कैसे कंट्रीज के नाम और एमपीज के नाम सारे कैसे याद कर लेता हूं। उससे पहले नॉर्मली ऑडियंस एक्सपेक्ट के भी मेमोरी में रिकॉर्ड बनाए हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन कोई 2 आपको के वाकई बनाए हैं कि ऐसे ही बस हवा में गप्पे मार के जा रहे हैं। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको मेरी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, to just make you confident। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मैंने जितने पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैं 118, उन सब का मास नंबर याद किया था, अप टू लास्ट डिजिट, लास्ट मेजर्ड डिजिट तक मैंने याद किया था, और उसको रिकॉल किया था शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और वो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का में 2018 के फर्स्ट पेज के ऊपर रजिस्टर्ड है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब वो फर्स्ट पेज पे मेरे नाम से बुक शुरू हुई, तो आई वॉज एक्साइटेड। तो आई रिकॉल दैट डेटा इन फ्रंट ऑफ यू। हाइड्रोजन 1.00794, हीलियम 4.002602, लिथियम 6.941, बेरिलियम 9.012182, बोरोन 10.811, कार्बन 12.0107, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 14.0067, ऑक्सीजन 15.994, फ्लोरीन 18.998403, नियॉन 20.1797, सोडियम 22.98976, 928, मैग्नीशियम 24.305, एल्यूमिनियम 26.981536, सिलिकॉन 28.0855, phosphorus 30.97376, sulfur 32.065, chlorine 35.453, argon 39.948, potassium 39.0893, calcium 40.078, and so on। 118 एलिमेंट्स तक की डेटा मैंने रिकॉर्ड। तो ये एक एडवांस टेक्निक है जिसको कराने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं बताने में, और उसके बाद उसकी अप्लाई करने में 2-3 हफ्ते लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते हैं। एंड इट इज इजी टू डू एंड एनीबॉडी कैन मेमोराइज एनी डेटा। एक और चीज में प्रभावित हुआ था, डॉक्टर शकुंतला देवी का आपने नाम सुना होगा। शी वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, मैं उनका बहुत फैन रहा हूं। वो बड़ी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट करती थी। अभी रिसेंटली उनके ऊपर एक मूवी बनी जिसमें विद्या बालन ने रोल किया था। तो वो क्या किया करते थे कि उन्होंने वो कहा करते थे मैंने 1000 साल का कैलेंडर याद किया हुआ है, आप कोई भी डेट बोलो तो मैं आपको डे ऑफ द वीक बता सकता हूं। वहां से प्रभावित होके, क्योंकि उनको एंड में जब पूछा जाता था कि ये कैसे करते हैं, तो शी वुड ऑलवेज से कि दिस इज माय पर्सनल, आई कैन नॉट शेयर, बट मैं इस चीज को हाफ एन आवर में किसी को भी सिखा दूं। जैसे मैंने सीखा, हाफ एन आवर लगता है, उसके बाद प्रैक्टिस है, एंड आई विल गिव द डेमोन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू। अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ का डे पता है कि उस दिन क्या डे था, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोले, मैं आपको डे ऑफ द वीक बता सकता हूं। एनीबॉडी इंटरेस्टेड? यस सर। 31st October 1965। दैट वाज संडे सर, राइट? तो आपको पता था इसलिए करेक्ट हो गया, नहीं तो अदरवाइज तो सर मैं कुछ भी बोल दूंगा। यस सर। 18th December 1937। That was Saturday, sir. Yes, that was Saturday.
आप 18 दिसंबर 1937 बोला आपने, है ना? इट इज राइट। ये तो सर मैं अब चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और कोई एनीबॉडी एल्स? यस। 25 May 2004. इट वाज ट्यूसडे, राइट? 21st April 2004. इट वाज वेडनेसडे, 24 October 1999. ट्यूसडे। 12 September 1998. एक मिनट, 9th April 2004. दैट वाज सैटरडे, फ्राइडे, सॉरी, फ्राइडे, दैट वाज फ्राइडे। 20 June 2003. सैटरडे, Friday. दोबारा बोलिए, डेट क्या थी? 20 June. ऐसे फ्राइडे इमीडिएटली नहीं बोलना, आपने कहना गलत है, बस ये कहना ताकि करेक्ट हो सके। अब आप एकदम से फ्राइडे कह देते हैं ना, वो तो हो गया ना, खत्म ही हो गया। यस, एनीबॉडी एल्स? लास्ट 12 September December. 1998. सैटरडे, राइट? 24 March 2003. दैट वाज फ्राइडे। चलिए, इतने ठीक है तो बाकी भी ठीक ही होंगे। तो ये सब मैंने प्रैक्टिस किया, और किसी को भी मैं हाफ एन आवर में सिखा सकता हूँ, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। गूगल पे जाओगे तो आप हौसला छोड़ दो, क्योंकि गूगल पे इतने लंबे लंबे मेथड दिए हुए हैं कि वो आदमी कहता है मैंने क्या करना है इससे। इससे क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि कोई पार्टी में बैठे हैं तो कोई गाना सुना दो, तो उसमें अगर आप ये डेमोन्स्ट्रेशन देते हो या पीरियोडिक टेबल की या कोई ऐसा डेटा याद किया हुआ है, तो जो लोग जिस नजरों से आपको देखते हैं ना, ठीक है सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फिर वो वहां पे आपने कुछ और रजिस्टर कुछ और हुआ होगा ना? मेरी मेमोरी खराब है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेमोरी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो दिस इज द थिंग विच आप अपनी लोगों को जब ऐसी चीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसलिए ये चीजें करने की जरूरत है। ये नहीं है कि हमने मतलब कोई वो कहते हैं शो ऑफ करना है, इसलिए नहीं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए। एंड नेवर बॉदर अबाउट व्हाट पीपल से, डू व्हाट यू लाइक, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये हो गया आपकी निमोनिक मेथड से। मैं बात कर रहा था स्पेशियल मेमोरी की। मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी है, उसमें 50,000 बुक्स पड़ी है, एक क्वेक आया और सारी बुक्स नीचे गिर गई हैं, अब ढेर लगा हुआ है। अब कहते हैं जी ये इस सब्जेक्ट की है, ये सब्जेक्ट की, अपने आप ढूंढ लो। डू यू थिंक 50,000 किताबों में से आपको ढूंढने में मिलेगी? चांसेस आर वेरी बिग। वैसे ही जैसे आप कुछ कहते हैं हाँ पढ़ा था, कभी कभी याद आ जाता है। इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि हम लोग डेटा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, आप किताब सामने खोलते हो सब कुछ ही देख लेता है, विद इन सेकेंड्स देख लेता है। यही कंसंट्रेशन क्रिएट करता है, इसी प्रोग्राम को चेंज करना। बट हम लोग उस डेटा को हैंगिंग छोड़ देते हैं। जैसे किताबें बिखरी पड़ी हैं, अगर उनको शेल्फ में स्टैक कर दिया जाए, बाहर एनसाइक्लोपीडिया लगा दिया जाए, सब्जेक्ट वाइज स्टैक्ड है, तो विद इन सेकेंड आप बुक ढूंढ लेते हो। तो इसी तरह से ये डेटा को स्पेस में कैसे हैंग करना, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। आपका ब्रेन नंबर्स और अल्फाबेट्स के लिए बना ही नहीं है। हम लोग इसको नंबर याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि नंबर याद करो, बट ये उसके लिए नहीं बना हुआ। ये इमेजेस को स्टोर करता है। ये इमेजेस की फॉर्म में अगर डेटा इसको फीड करोगे तो इट कैन स्टोर बिलियंस ऑफ सच इमेजेस। अगर आप इसको नंबर स्टोर करने को कहोगे, इट कैन नॉट स्टोर 10 नंबर्स इजीली, इट विल टेक टाइम। अगर इसको अल्फाबेट्स दोगे, अगर आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, इसके लिए वर्ड का कोई मतलब नहीं है जब तक कोई इमेज नहीं है। आप जब सामने पढ़ते हो एलिफेंट, तो एलिफेंट का इमेज आपके दिमाग में आता है। अगर आपको एलिफेंट का मतलब नहीं पता तो इट इज यूजलेस एंड यू विल नेवर रिमेंबर इट। तो योर ब्रेन इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इमेजेस एंड वीडियोस, बिलियंस ऑफ सच। तो वही आपकी मेमोरी का कारण है कि आपकी मेमोरी 2 एक्साबिट्स है। और हम इसको कैसे फीड कर रहे हैं? बार बार वही चीजें इसको दे जा रहे हैं। और ये ऐसी फ्लेक्सिबल चीज है कि जो मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं उससे गुजारा चली जा रहा है आपका। फिर आप कहते हैं मेरी मेमोरी एवरेज है, क्योंकि गुजारा चला रहे हैं। हम इसका मेथड ऑफ अडॉप्टिंग नहीं समझ रहे, मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा नहीं समझ रहे। तो अगर आपको मैं प्रेसिडेंट कहूं, एक अभी लिस्ट दे दूं, यहां पे डिस्प्ले कर दूं, तो आपको कहूं याद करो, तो आप करोगे, पर सीक्वेंस में कोई भी नहीं बता पाएगा। चाहे 15 मिनट आपके सामने डिस्प्ले कर दूं ना, सीक्वेंस में बता नहीं पाएंगे आप। बट अगर मैं उसको इमेजेस की फॉर्म में करूंगा तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट सो इजीली। लेट्स से ये रूम है, इस रूम में हम कुछ पोजीशन फिक्स करते हैं। दैट कॉर्नर इज फर्स्ट पोजीशन, ये बोर्ड हो गया सेकंड पोजीशन, एसी हो गया थर्ड पोजीशन, वो कॉर्नर फोर्थ पोजीशन, ये सेंटर हो गया फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ एसी सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th एंड सो ऑन। अब आपको मैं मेथड बताता हूं कि आपने कैसे याद रखना है। कि सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरे मेथड क्या है कि राजेंद्र कुमार मेरे एक बड़े फेवरेट एक्टर रहे हैं, सर जरूर जानते हैं, बड़े फेमस एक्टर थे, बहुत बढ़िया। आप कोई भी राजेंद्र को जानते? एनीबॉडी?
वो आपकी कैंटीन वाला भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके घर में भी कोई हो सकता है, एनी राजेंद्र, ओके, ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद ओवर देयर। ये मैंने इमेज अपने दिमाग में बना लिया कि यहाँ पे राजेंद्र कुमार खड़े हैं और सबको प्रसाद बांट रहे हैं। दैट इमेज इज स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। यू विल सी कि आप वहां भी पहुंच जाओगे, ये इमेज नहीं जाएगा कहीं पे। कैन यू सी? दिखना चाहिए आपको। वो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस यू विल बी गुड इन इमेजिंग। शुरू में आप इतने अच्छे नहीं होंगे। देन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट। इस पोजीशन पे राधाकृष्णन को याद रखने के लिए हम टेंपल्स में जाते हैं, वहां राधाकृष्ण का स्टैचू हमें इजीली नजर आता है। वो मैंने स्टैचू यहां पे रख लिया। यहां पे राधाकृष्ण का स्टैचू है। तीसरे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का मैं तो उनको बड़े अच्छी तरह से मतलब याद है उनकी पिक्चर को। गॉगल लगाया करते, डार्क गॉगल लगाते थे और कैप पहना करते, वो होती है मुस्लिम कैप तीखी वाली, वो पहनते थे। तो मेरे दिमाग में तो इमेज है, पर आपके दिमाग में नहीं होगा। यू आर यंग जनरेशन, शायद ना देखा हो। तो हुसैन कोई भी, एमएफ हुसैन पेंटर, उनका इमेज ले सकते हैं आप। हुसैन इज पेंटिंग समथिंग ओवर देयर, ये इमेज आप वहां पे बना लीजिए। हुसैन वर्ड आपके ब्रेन को जाकिर हुसैन पता है, सिर्फ उसको हिंट चाहिए, पूरा नाम नहीं याद रखना, हिंट चाहिए उसको। हुसैन आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि जैसे स्कैनिंग मशीन से स्कैंडियम एकदम से आ जाएगा, आपके दिमाग में है, और उसको हिंट चाहिएगा, वो हिंट हमने दे दिया। नेक्स्ट इज वीवी गिरी। तो गिरी के लिए खूब सारी गिरियों का, बादाम गिरियों का ढेर लगा लीजिए वो कॉर्नर पे। गिरी, वहां पे बहुत सारी गिरियां पड़ी हुई हैं। दैट्स इट, दैट्स इजी टू रिमेंबर। देन फखरुद्दीन अली अहमद। तो अली वर्ड मैंने अपने दिमाग में फिट किया। बॉक्सर अली, उनको जानता हूं मैं, आप कोई और इसके साथ जरूरी नहीं मेरी स्टोरी फॉलो करनी, यू मेक योर ओन स्टोरी। तो अली, ही इज डूइंग बॉक्सिंग ओवर देयर, दैट इमेज इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। देन नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम इज माय कोलीग एंड संजीव इज माय फ्रेंड। इवन डॉक्टर साहब इज सिटिंग ओवर हियर। कोई भी इमेज आप उनसे बना लीजिए, बोथ ऑफ देम आर स्टैंडिंग एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर और डूइंग सम एक्शन। अगर एक्शन इन्वॉल्व हो तो और भी। नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम और संजीव सामने आए, मेरे को याद हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, वो तो आपने देखा, वो बड़ी सी शेरवानी पहना करते थे, हमारे पंजाब के थे। तो आपको अगर इसका नहीं समझ आती तो कोई भी ज्ञानी, कोई भी, किसी को भी आप ज्ञानी समझते हैं तो वो इमेज वहां पे बना लीजिए। देन कम्स वेंकटरामन, मैं वीवीएस लक्ष्मण के साथ रिलेट कर लेता हूं। देन कम्स उसके शंकर दयाल शर्मा। शंकर इज माय कोलीग एंड शर्मा माय फ्रेंड। इन दोनों का मैंने इमेज स्टोर कर लिया, आपके दिमाग में भी आ गया होगा। देन आफ्टर दैट के.आर. नारायणन। के.आर. तो मैं कुंवर राजीव, अपना ही नाम, मैं खड़ा हूं वहां पे तो के.आर. से मुझे वही याद हो जाता है। अब्दुल कलाम आजाद, साइंटिस्ट, सबको पता है, सिंपल पर्सनालिटी, रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा इमेज बना लीजिए। तो इस तरह से अगर आप डेटा को याद रखेंगे, मैंने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे याद की, इंडिया की 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। 4 मिनट में रिकॉर्ड बोल के मैंने पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और वो आपके सामने मैं डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकता हूं। लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, राइट, एंड सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। देन कम्स दैट पंजाब के बारे में हम आते थे, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर, हुशियारपुर, अनंतपुर साहिब, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर। देन रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, सिंहपुर, भूम, कोडरमा एंड सो ऑन। राइट नाउ माय माइंड इज नॉट प्रिपेयर्ड, मे बी एग्जॉस्टेड, बट आई कैन डू इट लेस देन 4 मिनट्स में मैं इस रिकॉर्ड को बना सकता हूं। पर ये उस टाइमिंग पे मैं अभी नहीं जा सकता। रीजन भी, जब मैं रिकॉर्ड बनाता हूं तो 15 दिन पहले हर आधे घंटे के बाद अलार्म लगता है, उसको मैं प्रैक्टिस करता हूं हर आधे घंटे के बाद, और फिर 15 दिन के बाद मेरे रिकॉर्ड टाइमिंग्स आते हैं। याद करना एक अलग बात है, पर उस रिकॉर्ड टाइमिंग को रिप्रोड्यूस करना जो वर्ल्ड का सबसे शॉर्टेस्ट हो, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप पहले याद कर लो, फिर प्रैक्टिस करते जाओ तो आपका टाइम कम होता जाता है। तो इस तरह से ये स्पेस के ऊपर मैं अब उसको कट शॉर्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं, अपने रूम में शेल्फ इमेजिन करता हूं। लंबी सी शेल्फ यहां लगी है, दूसरी शेल्फ यहां पे, तीसरी यहां पे। अब यहां से शुरू हो जाता हूं। चाइना, बीजिंग, राइट, इसका इमेज बनाओ। कोई भी, चाइना, बीजिंग, मैक्सिको, फ्रांस, पेरिस, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, वेनेजुएला, कैरेकस, इंडिया, न्यू दिल्ली, सबके इमेज बनाते जाइए और उसको रिवाइज भी करते जाइए। कि अगर आपने 10 याद कर लिया ना, तो 11वां याद करने से पहले पिछले 10 को एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने माइंड, और फिर 20 जब कर लिए तो पिछले रिवाइज कर लीजिए, 30 जब कर लिए तो पिछले रिवाइज करते जाइए। और एक स्टेज आएगी कि वो जो फर्स्ट 10 है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे चले गए होंगे, उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी। दैट विल बी इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इस तरह से अगर आप कोई भी डेटा को इमेजेस की फॉर्म में स्टोर करेंगे तो आप अनलिमिटेड डेटा अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड डेटा। एंड इसी तरह से आप जो भी, जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं, अभी बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं।
नाउ आई कम टू द थर्ड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज इंडिपेंडेंट मेथड। इंडिपेंडेंट का मतलब आपको कोई टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है। जो तीसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूं उसको भी सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेशन पे वर्क करते जाइए। दैट इज कंप्लीट मेथड। स्वामी विवेकानंद जी ने कोई टेक्निक नहीं सीखी थी, वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, वो तो बंद किताब को भी पढ़ लेते थे। अब आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे कैसे हो सकता है? बंद किताब को पढ़ा जा सकता है, कोई विश्वास करता हो सकता है, पॉसिबल है? मेरा भी विश्वास नहीं था, बट एक मैं अवार्ड सेरेमनी बैठा था दिल्ली, मेरे टेबल पे एक लड़का और उसके फादर बैठे थे। उनको पता नहीं था मैं क्या करता हूं, मुझे क्यों अवार्ड मिल रहा है, मुझे उसका नहीं पता था। जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने बताया जब मेमोरी में, तो ही वॉज एक्साइटेड। जब वो स्टेज पे गया तो आई वॉज मोर एक्साइटेड, क्योंकि उसने क्या किया, स्टेज पे गया, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई और उसके सामने किताब रख दी गई और पट्टी 4 लोगों ने चेक की, पहले नीचे व्हाइट, फिर ऊपर ब्लैक, फिर उसके ऊपर व्हाइट, और फिर उसको 3 लेयर्स में बंद किया और फिर उसके सामने किताब रखी और उसने किताब का पेज पढ़ दिया। अब आप ये तो मेरे लिए तो मैजिक है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ कि इट इज पॉसिबल। दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन ओपनिंग। मिड ब्रेन ओपनिंग ही इज अ वेरी गुड। वो फैमिली मेरे साथ आज भी बहुत जबरदस्त एसोसिएटेड है। और उसके बाद उसने लेह लद्दाख में पट्टी बांध के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेह लद्दाख की रोड के ऊपर उसने ड्राइव किया था फ्यू किलोमीटर्स। अब इसको बोलते हैं मिड ब्रेन ओपनिंग। मिड ब्रेन ओपनिंग का मतलब है कि जब आप उसको, अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में थर्ड आई ओपनिंग, तीसरी आंख का खुलना, और कोई भी कर सकता है। ये बात मुझे हैरानी हुई। वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और ऐसे इंडिया में बहुत से बच्चे हैं जो ये सब कर लेते हैं, बड़े आराम से किताब पढ़ लेते हैं। उसने भी कहा हॉल में लेफ्ट हैंड साइड पे कोई खड़ा हो जाए, उसने खड़ा हुआ है, कहता वेव करो। अब उससे पूछा गया उसने किस रंग के कपड़े पहने, उसने बता दिया ये रेड वाले, ये ब्लू वाले, सब कुछ बताया उसने। तो आपको विश्वास नहीं हुआ, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम टू से, उसको वंडर बॉय बोलते हैं, वंडर बॉय, राइट? तो वो आप सर्च कर सकते हो कि ब्लाइंड फोल्डेड वंडर बॉय, तो आप देखोगे यूट्यूब पे उसके वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हमारा बिलीफ होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर्स हैं, आप कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया में नोबेल प्राइज वगैरह क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका रीजन सिंपल पता क्या है कि हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं, मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूं, साइंस पढ़ते हैं तो अपना माइंड क्लोज कर लेते हैं। ये सिर्फ साइंटिफिक प्रूफ मिलेगा तो वही सच है, बाकी सब फ्रॉड है, बाकी सब फ्रॉड है। माइंड को ओपन रखिए। वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अपने माइंड को ओपन रखते हैं, और जिसने भी जिंदगी में साइंस के फील्ड में या किसी भी फील्ड में राइज किया है, उसने अपनी मन की ताकत का इस्तेमाल किया है, तभी वो कुछ बड़ा कर पाया। क्योंकि नोबेल प्राइज का मतलब क्या है? यू हैव टू डू समथिंग इनोवेटिव, कुछ ऐसा करना जो आज तक नहीं हुआ। वो आप कैसे कर लोगे? जब तक आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं है तब तक ये नहीं हो सकता। तो इमेजिनेशन आपके माइंड में है तो वो माइंड ही आपको आइडिया देगा। बहुत से आपने देखा फलानी फॉर्मूला ढूंढ रहा था, रात को सोए सोए ख्याल आया, फिर उसने वो फॉर्मूला सुबह चेक किया तो उसका रिजल्ट आ गया। अभी परसों मैं किसी एक स्पीकर के साथ था, एक जगह मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कहते मेरी पीएचडी कंप्लीट इस तरह से हुई कि मैं हर वक्त उस प्रॉब्लम में रहता था, रात को सोए सोए मुझे एक आइडिया आया, मैं उसी टाइम उठा, कागज पे लिखा और सुबह चेक किया तो मेरी प्रॉब्लम का हल निकल आया। उन्होंने एक 20 किलोमीटर हाइट का स्ट्रक्चर बनाया था, गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, स्पेस एलिवेटर, तो कहते वो भी माइंड से ही निकला। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है अगर आप माइंड ओपन रखो और हमेशा किसी को भी देखो तो उसके ऊपर विश्वास करो कि यार, जैसे कई लोग कहते हैं ओ यार बाबे बड़े फ्रॉड है ये, मैं कहता यार तू बाबे के 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं किसी के भी, और तू किसी से पेन मांगे तो वो कैप अपने पास रख लेता है, इतना विश्वास नहीं तेरे ऊपर करता, और तू उस बाबे को क्रिटिसाइज कर रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो होगा, इतनी दुनिया पागल नहीं है कि 5 करोड़ लोग उसके पीछे, क्यों क्रिटिसाइज करना? मुझे नहीं पता उसके पास क्या है, ये मानो मुझे नहीं पता, उसके पास कोई ना कोई ताकत है, कुछ ना कुछ उसकी स्पिरिचुअल लेवल है जिसके कारण लोग उसके पास जा रहे हैं। तो ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन कि ऐसा दुनिया में क्या है जो मैं नहीं जानता। ये नहीं हमेशा कहना मुझे सब आता है। तो ये तीसरा मेथड जो है वो है रिव्यू मेथड, इसको बोलते हैं रिव्यू मेथड। रिव्यू का मतलब है कि हम जो भी पढ़ते हैं वी वांट के ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। तो उसके लिए एक एबिंगस कर्व बोलते हैं, एबिंगस कर्व आप गूगल पे सर्च कीजिएगा आपको पता चलेगा। वो क्या कहती है कि आपने अभी क्लास में पढ़ा 40 मिनट, आपको समझ आ गया। जब आपको आर्टिकल समझ आ गया ना, डोंट लेट इट गो, इसको जाने नहीं देना हमने, दोबारा इसके ऊपर एफर्ट नहीं करनी, इसको आज ही एग्जाम तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाओ, आज ही। क्योंकि दोबारा 40 मिनट का टॉपिक टीचर की एक्सपीरियंस की वजह से आपको समझ आया, अगर आपने आज उसको रिवाइज ना किया ना तो फिर जब आप महीने बाद खोलोगे तो दोबारा उतनी एफर्ट करनी पड़ेगी, वो सब आप भूल चुके होंगे। तो वॉट एवर यू लर्न डोंट लेट इट गो। तो उसका तरीका क्या है? फॉर्मूला 0 1 7 30 90 180 आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो, 0 1 7 30 90 180।
इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आज आपने जो सुबह पढ़ा, मान लीजिए 4 क्लासेस लगी आपकी, 4 क्लासेस में 40-40 मिनट, एक घंटा, 45 मिनट, जो भी है, आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए। अब 0 का मतलब है कि शाम से पहले आपने उनको एक बार रिवाइज करना। 0 में 0 डे, जिस दिन आपने फर्स्ट डे उसको सीखा है उसी दिन रिवाइज करना है। और रिवाइज करना ऐसे नहीं होता, रिवाइज भी बता दूं कि ये पढ़ लिया, हो गया सारा, ठीक है। नो, माइंड में आपके पूरा टॉपिक रिवाइज होना चाहिए। आप उसको पढ़िए, माइंड में रिवाइज कीजिए, क्या सारा टॉपिक आपके दिमाग में आ गया? बीच में रुके, कोई बात नहीं, दोबारा फिर देखिए। ये धीरे धीरे विद प्रैक्टिस ये दोबारा करने की जरूरत नहीं रहेगी, बट शुरू में ये दिखते हैं और वहीं से लोग निकल लेते हैं, कहते नहीं वो ठीक है, पुराना मेथड ठीक है। तो उसको रिवाइज कीजिए माइंड में। अगर माइंड में पूरा रिवाइज हो गया, दैट्स 50 मिनट टीचर ने लगाए हैं, 10 मिनट रिवीजन पे लगेंगे। 0 के बाद 1, अब 1 मींस अगला दिन, क्योंकि जो आप 100% पे लेके गए ना, वो 60-70% तक आ जाएगा शाम होते होते, और अगले दिन और भी कम हो जाना। तो आपने जब रिवाइज किया, दोबारा 100% कर दिया, फिर वो नीचे आया, फिर आपने 100% कर दिया, फिर वो नीचे आया, और धीरे धीरे वो नीचे बहुत कम आएगा और 100% आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। उसके लिए आपको अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 0, 1, 7, 30, 90 तक चाहिए, और अगर एनुअल सिस्टम है तो 180 तक जाना होगा। अब ये कौन याद दिलाएगा कि कौन सा टॉपिक कब याद करना है? इसके लिए एक बंदा रखना होगा? नो, सिंपल एक मेथड है जो मैंने अडॉप्ट किया। एक कॉपी ली, इसी को डेडिकेट कर दी, उसके सेंटर में लाइन लगा दी हर पेज पे। जिस दिन आपने पढ़ना शुरू किया उस पेज पे डेट डाल दी, हर पेज पे अगली अगली डेट डालते जाइए। सेंटर में लाइन क्यों लगाई? एक अपर हाफ हो गया, एक लोअर हाफ हो गया। अपर हाफ में फ्रेश टॉपिक लिखने हैं और लोअर हाफ में रिवीजन वाले टॉपिक लिखने हैं। आज आपने 4 किए या 5 किए, जो भी है, दैट नंबर डिपेंड्स ऑन यू। कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो उसका सिस्टम और होगा, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर में है तो और है, एनुअल है तो और है, वो आपको वो कॉमन सेंस से पता चल जाएगा। अपर हाफ में आज आपने 4 टॉपिक किए, उनकी हेडिंग लिख लीजिए, वही हेडिंग लोअर हाफ में भी लिख लीजिए, वो 0 डे हो गया। अगले पेज खोलिए, टुडे इज 25, 26 में लोअर हाफ में वही टॉपिक लिख लीजिए। 1 के बाद 7 पे आ जाइए, उसको 0 मान के 7th डे खोलिए, वही 4 टॉपिक की हेडिंग आज ही लिख लीजिए वहां पे, फिर 30 पे लिखिए, फिर 90 पे लिख लीजिए। अब अगला दिन आया, 4 नए टॉपिक किए, नीचे नजर आ रहा है कि इनको रिवाइज करना है, उनको रिवाइज कीजिए, ऊपर फ्रेश टॉपिक लिखिए, आगे चलते जाइए। 30-35 दिन बाद जब आप पेज खोलेंगे तो आपको पता होगा कि आज किस टॉपिक के रिवीजन की बारी है, उसको रिवाइज करिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। आई गारंटी यू कि आपका स्टडी पीरियड हाफ हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है, टीचर के एक्सपीरियंस से उसने 1 घंटे में आपको समझा दिया टॉपिक, आप जब खुद पढ़ेंगे तो उससे कम 1.5 घंटा लगेगा आपको। अब उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाने के लिए अब फिर 15-20 दिन आप उसको टच भी नहीं करेंगे उस टॉपिक को, आप सोचेंगे मुझे आता है, 15-20 दिन बाद फिर खोलेंगे, फिर उतनी एफर्ट करनी पड़ेगी, एंड वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। अगर इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लें, ये साइंटिफिक सिस्टम है, मेरा अडॉप्ट किया नहीं है, टेक्निक मैंने जरूर अपने लिए बनाई कि कैसे याद रहेगा, बट सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है, इजिप्शियन ग्रीक्स का। तो अगर आप इस तरह से रिवाइज करते जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जैसे बॉडी है, मैं कहूं कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं खाना नहीं खाना, मैं संडे के संडे खाया करूंगा। अब रोज की आप 5-6 चपाती खाते हो, सब्जी खाते हो, संडे को सारी लेके बैठो बड़े पतीले में सब्जी और 20-25-30 चपातियां, विल यू बी एबल टू ईट? तो अगर हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती तो ब्रेन कैसे करेगा? ये सिस्टम क्यों बनाया हुआ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का? ताकि थोड़ा थोड़ा आपको रोज दिया जाए, तो आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट भी करता जाएगा और मेमोराइज भी करता जाएगा। और अगर आप इसको इकट्ठा होता गया, सारा सेमेस्टर मस्ती, पहले फेयरवेल आ गई है, फिर पहले आ गई वेलकम, फिर फेयरवेल आ गई, फिर ट्रिप चला गया, फिर बीच में फंक्शन हो गए, अब पेपर आ गए, जो ही डेट शीट अनाउंस हुए, नोट्स इकट्ठे करो, नोट्स इकट्ठे किए, अब उसको याद करना, ये वही बात हो गई ना, फिर 25 चपातियां और 1 पतीला सब्जी, ये हम लोग सेमेस्टर के एंड में सब कर रहे हैं। तो अगर आपको एवरेज रहना है जिंदगी में तो ये करते रहिए, दिस इज वेरी गुड। पर अगर इच्छा है कुछ जिंदगी में बड़ा करने की, तो कुछ अलग ही करना होगा, कुछ डिफरेंट करना होगा, कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा, और रोज के रोज एक हैबिट को चेंज करना होगा। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो बाय द टाइम यू विल पास आउट, आप बुलंदियों को छू सकते हैं। अदरवाइज नौकरी तो मिल ही जाएगी, क्लिनिक तो सेट हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, देख लेंगे, मौका आएगा, तो उस एटीट्यूड से चल रहे हैं। तो यू आर इन अ वेरी गुड कॉलेज, आई एम टेलिंग यू, विद वेरी गुड स्टाफ जो आपको पूरी तरह इक्विप करने जा रहे हैं, राइट? यू आर ब्लेस्ड कि आप ऐसे कॉलेज में हैं, ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं आपको। अब आगे आपकी मर्जी है कि यहां से इनके स्टूडेंट्स कहां कहां तक गए हैं और कहां कहां तक गए हैं, सब जगह जाते हैं। तो इसलिए इट इज अप टू यू कि आपने जो भी आज सीखा। लास्ट में मैं कंक्लूड करता हूं 2 मिनट में। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज सक्सेस? होती क्या है सक्सेस?
सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है सर। सक्सेस किसको बोलते हैं? सक्सेस, Accomplishment. अकम्पलिशमेंट, वेरी गुड। किसी की और डेफिनेशन कोई? सक्सेस किसको बोलते हैं? Achievement as per your satisfaction. वेरी गुड, अचीवमेंट एज पर योर सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड। अकम्पलिशमेंट, कुछ अकम्पलिश करना जिंदगी में, दैट इज सक्सेस, राइट। तो मैं बहुत सक्सेस की डेफिनेशन पढ़ी है, बट मैं फॉलो सर एक करता हूं जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, दैट इज देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेस। फर्स्ट इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट, you should have financial success, you should have as much money as you want so that जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं वो आप खरीद सकें, एक पहली फाइनेंशियल सक्सेस है। सेकंड इज फिजिकल सक्सेस, पैसा आपके पास बहुत है, सेहत नहीं है, वो पैसा यूजलेस है आपके पास, किसी काम का भी नहीं है। बहुत से ऐसे बिलियनर्स हैं जो कहते हैं सारा पैसा ले लो मेरे को ठीक कर दो, वो नहीं हो सकते। तीसरा फैमिली सक्सेस, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास सेहत भी है, पर मैं अपनी फैमिली में वो संस्कार नहीं दे पाया, एक भी मेरा बच्चा मान लीजिए वो ठीक रास्ते पे नहीं चल रहा, वो सब कुछ मेरे लिए यूजलेस है। फैमिली सक्सेस। और फोर्थ इज स्पिरिचुअल सक्सेस। अगर आप 3 सक्सेस के पीछे चलेंगे, चौथी आपके पीछे झक मार के आएगी, कहते हैं चौथी अपने आप आपके पास आएगी, क्योंकि बिलियनर्स जो है वो 90% डोनेट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? हमारे जैसा आदमी सोचता है यार पागल क्यों करी जा रहा है, दैट इज आवर मेंटालिटी। उसके उस लेवल पे हम सोच ही नहीं सकते वो क्या होता है। तो ये 4 सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं, आप अपना प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं। और थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशन है, अकम्प्लिश करना एंड अपनी सेटिस्फेक्शन जो आप चाहते हैं वो करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट इज सक्सेस। अब लास्ट में सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस सक्सेस को पाने के लिए हमारे अंदर क्या क्या चाहिए, क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए। पेशेंस नंबर 1, Focus and clear mind. फोकस एंड क्लियर माइंड, वेरी गुड। और कंसंट्रेशन, वेरी गुड। कंसिस्टेंसी, वेरी गुड सर, बिल्कुल ठीक है। और Intelligence. इंटेलिजेंस भी चाहिए, यस। हाँ जी, जो मुझ में नहीं है। और कोई? Flexibility and adaptability. फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, राइट। हार्डवर्क भी चाहिए। तो अब हुआ ये कि इतना कुछ चाहिए, ये तो मैं जब बैठा हूं यहाँ पे अगर आपके बीच में, मैं सोचूंगा हार्डवर्क तो मैं कर सकता हूँ, ये जो कंसिस्टेंसी कह रहे हैं, ये कहते हैं फोकस चाहिए, ये कह रहे हैं क्लैरिटी चाहिए, तो मेरे पास 12-13 चीजें चाहिए तभी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो ये 12-13 मेरे पास है नहीं, तो सारा हॉल नेगेटिव हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, सक्सेस नहीं होने वाली है ना। आई डोंट वांट टू लीव दिस हॉल नेगेटिव। लेट मी टेल यू, आपके पास ये सब कुछ है। आपको अगर कुछ चाहिए ना, इंटेलिजेंस आपके पास है, आप कंसिस्टेंट भी हो जाओगे, आप स्टेज पे नहीं बोल सकते, आप बोलने लग जाओगे, आपके अंदर वो सब कुछ है, यू आर ए कंप्लीट पैकेज। आपको नहीं पता, बट आपको पूरी तरह कंप्लीट बना के भेजा हुआ है। सिर्फ चाहिए एक डायरेक्शन, एक ड्रीम, एक गोल। अगर आप उसके ऊपर वर्क करेंगे तो लोग आपको आप खुद हैरान हो जाओगे। मैं तो अब मेरी इंटरव्यूज टीवी पे आई तो एक मेरे लैब अटेंडेंट की वाइफ ने मैसेज भेजा कि ये ना रिद्धि सिद्धि का कोई ज्ञाता है, ये नॉर्मल बंदे नहीं। अब मुझे ये भी सुनना पड़ा, मैंने कोई रिद्धि सिद्धि हासिल की हुई है जिसकी वजह से मैं ये डेटा रिकॉल कर रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि लोग आपको किस एंगल से देखते हैं वो पूरा बदल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम, एक गोल, क्लैरिटी ऑफ कि अगर आपको उसकी बजाय 100 रास्ते और भी दिखाए जाए ना कि नहीं यार ये छोड़, ये रास्ता बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल क्लियर हो, अच्छा होगा तो मेरे लिए यही है, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज द ओनली थिंग आई कैन सी, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। वो क्लैरिटी आते आते टाइम लगता है, वो क्लैरिटी फाइंड आउट करते हुए टाइम लगता है। तो देयर इज अ सुपर पावर व्हिच इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और हमें हेल्प करने को तैयार है। हम में से एक क्लियर माइंड हो गया, उसने नेचर पूरी की पूरी जुट जाएगी आपको आपकी ख्वाहिश से मिलाने के लिए, पूरी कायनात जुट जाती है। तो बी क्लियर, क्लैरिटी ऑफ थॉट, गोल, सिर्फ वो चाहिए। आपके अंदर वो सब कुछ है। मैं आपको बताऊं कैसे, एग्जांपल दूं। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके साथ आपका एक दोस्त भी है, आप दरवाजे के पास खड़े हैं और हवा का आनंद मान रहे हैं ट्रेन में खड़े होकर, आमतौर पर इंडिया में जैसे करते हैं। पीछे से आपका दोस्त आता है, वो कहता है राजीव जंप आउट ऑफ द ट्रेन। आप इमीडिएटली क्या सोचोगे, यार मरना है, जंप आउट ऑफ द ट्रेन, व्हाट आर यू सेइंग? पूरी बात नहीं सुनी, उसने कहा जंप आउट ऑफ द ट्रेन, पीछे आग लग गई। अब क्या होगा? चलती ट्रेन में आग लगी, वो तो सेकंड में फैलने वाली है। अब क्या होगा? मैं एकदम से मेरा माइंड ढूंढना शुरू कर देगा, कोई सॉफ्ट सी मिट्टी आ जाए, मैं जंप कर दूं, वहां 2-4 हड्डियां टूटी, बच जाऊंगा, पीछे तो बचने का चांस नहीं है। कहने का मतलब क्या, जंप जब मैंने बोला तो हम कोई भी जंप नहीं कर सकते थे। जब पता चला पीछे आग लगी, रास्ता कोई नहीं है, तो हमें जंप करने की एनर्जी आ गई। इसका मतलब क्या है, एनर्जी तो हमारे अंदर थी, पैकेज तो हम कंप्लीट थे, कारण नहीं था। जो ही कारण नजर आया, इमीडिएटली वो एनर्जी बाहर आ गई एंड यू आर एबल टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। तो इसलिए ड्रीम के ऊपर सिर्फ फोकस कीजिए, रास्ता नेचर देगी आप। एंड दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क।
आई एम सो थैंकफुल, ऑडियंस इज सो रिसेप्टिव, सबके चेहरे कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्टेड नजर नहीं आया मुझे. सर यू हैव गॉट क्रीम ऑफ स्टूडेंट्स. क्लैप फॉर योरसेल्फ. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. आई एंजॉयड टॉकिंग टू यू. अगर मैंने ज्यादा टाइम ले लिया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ज़्यादा तो हम आपको और भी देंगे. मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ. यस श्योर. हमारा एक कॉमन फ्रेंड है हाँ जी. राजीव पुरी जो कंप्यूटर्स में है. राइट. तो आपको उनका नंबर याद होगा. हाँ जी. नंबर यस. बता दीजिए. 9815952711. ठीक है जी. दूसरा एक हमारे हैं प्रिंसिपल अजय सरीन. शायद आपके पास उनका नहीं, उनका नंबर नहीं है मेरे पास. नहीं है. तो आपके अभी नए प्रिंसिपल आए राजेश जी. नहीं, उनका मैंने जो याद किया था ना उसके बाद मैं आपको बताऊं. 1269 वो मेरा रिकॉर्ड बन गया. उसके बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया था. आपको फ्रैंकली बताऊं, कुछ भी मैं स्टोर करता हूं उसको डिलीट इसलिए करना होता है कि जब तक वो मेरे माइंड से नहीं जाएंगे मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं करता. उसका मैंने डेटा इसलिए याद किया कि मैं इसके ऊपर गिनीज रिकॉर्ड बनाऊंगा. गिनीज को भेजा, वहां पे गया, पर वो कहते हैं जी इस डेटा के ऊपर गिनीज रिकॉर्ड नहीं बन सकता. तो मैंने कहा फिर मैं डेटा स्टोर करके क्या करूंगा, होटलों के रेस्टोरेंट के नंबर याद करके क्या. देयर इज अ मेथड सर जिससे आप याद भी रख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं परमानेंट मेमोरी से. वो भी पूरे मेथड्स हैं. जो फालतू चीजें हैं उनको मैं डिलीट करता जाता हूं ताकि और स्पेस बनता जाए. 2 मिनट में Right. कंक्लूड करते हैं. ये घुमा दें. किसी की सर बच्चे के क्वेश्चन है तो पूछने कोई है. किसी ने पूछना है तो पूछिए. यस. सर ये सारे बच्चे एमबीबीएस की तैयारी करते हैं और मोटिव इनका होता है एमबीबीएस और ये बीएमएस में आ जाते हैं. तो आपकी पहली चीज पे ही व्यवधान आ रहे हैं, लक्ष्य एंड. तो इनको कैसे आप मोटिव करेंगे, इनको क्या करेंगे, मोटिव कैसे करेंगे, कैसे मोटिवेट कैसे कैसे करेंगे. उनका एम तो चेंज हो गया उसी टाइम. आपने खुद ही जवाब दे दिया सर. आपके क्वेश्चन में ही जवाब था. मेरा तो सर ये क्यों आए यहाँ पे, आप अपने अंदर एनालिसिस कीजिए. क्या आप अगर यहाँ पे आ गए हैं तो कोई गलती कर ली आपने कि आप एमबीबीएस में जाना चाहते थे और शायद इस फील्ड में कोई सक्सेस नहीं है. मैं तो अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ. उनको मैंने फ्रीडम दी थी. तुमने आर्ट्स पढ़ना, साइंस पढ़ना, कॉमर्स पढ़ना, जो मर्जी पढ़ो. मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ फैमिलीज में होता है साइंस नहीं पढ़ी तो समझो नलायक है बच्चा. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था. बड़ा क्लियर था मैं. राइट. और बच्चों ने जो चूज किया खुद चूज किया. वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, फील्ड दुनिया में कोई भी हो उसका टॉप जरूर है. ठीक है. टॉप पे है. अगर आप हिस्ट्री में हो, आप ज्योग्राफी में हो, आप आयुर्वेदा में हो, आप मेडिकल में हो, टॉप है वो. आप अगर वहां चले जाते शायद वो टॉप ना अचीव कर पाते. यहाँ पे आप कर पाओ. नेचर ने आपको पता नहीं रास्ता दिखाया है. तो इसलिए आप किसी भी फील्ड में रहो, सिर्फ ये दिमाग में रखो कि इसका टॉप कहाँ गया, लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, क्या इस फील्ड में बढ़ा हुआ है. अगर वो दिमाग में रखोगे यू कैन डू वंडरफुली वेल, मच बेटर देन एनी अदर एमबीबीएस और एनी. सर ने आईआईटी वालों से भी बेटर. सर ने बिल्कुल सही कहा. मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम ले लिया है. मेरे फादर बचपन से मेरे को कहा करते थे कि तुम दुनिया में, ज़िंदगी में जो कुछ भी करो, शहर में तुमसे बेटर वो बंदा नहीं होना चाहिए, चाहे तुम मोची बनो. तो अगर आप मोची भी बनो तो आपसे बढ़िया मोची शहर में नहीं होना चाहिए. मैंने ये सोचा था कि मैं आयुर्वेदिस्ट बनूंगा, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनूंगा और शहर में से मेरे से बेटर को होना नहीं चाहिए. सो व्हेन आई प्रैक्टिस आयुर्वेदा, सो आई वाज द नंबर 1 आयुर्वेदिक कंसल्टेंट इन द सिटी. सो ये बात है. दूसरी बात, आपका जो सवाल था तो ये तो यहाँ तक पहुँच गए हैं. अब इसके आगे जहाँ और भी है, तो इससे पहले सर इनको मिले नहीं थे, आज मिले हैं तो ये मोटिवेशन है. तो आगे आई बिलीव कि बहुत कुछ करेंगे. सर ने जो बातें कही सारे लेक्चर में मैंने बड़ा ध्यान से सुना, हमने रिकॉर्ड भी किया है. फिर सुनेंगे. हमारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर को विद परमिशन ऑफ सर ले लेंगे, इसको बार बार सुन सकते हैं. हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया. 2 बातें कहूँगा. सर ने जो भी कहा इसकी जिस्ट में मेरे को जो बात समझ में आई, नंबर 1, सेट योर गोल, फोकस इन योर गोल एंड यूज पावर ऑफ सबकॉन्शियस. राइट सर? दिस इज जिस्ट इन 2 थिंग्स, 2 वर्ड्स. एक इसमें ऐड कर दो कि आप अपने गोल पे फोकस कीजिए और जो कर रहे हैं ना वो बेहतर और बेहतर करने की कोशिश कीजिए. उसी में से रास्ते, ये नहीं कि सो जाना, ड्रीम पे फोकस करें. व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू योर बेस्ट इन दैट. पहले से भी बेहतर करना जरूर, रास्ता आपके पास आएगा ही. Because there is always a scope of improvement in everything, there is nothing perfect. And lastly, I suggest you a book, The Power of Subconscious Mind, which is also a good book. Follow the book and it will always help you. उनके ऑथर है जोसेफ मर्फी, नोट कर सकते हैं. है जोसेफ ना? मर्फी तो की बुक power पढ़िए, of- बार बार मैंने पढ़ी है. इस बुक ने जो सर ने कहा ना कि अफर्मेशन एंड रीअफर्मेशन, कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक सोच रहा हूँ, वो अगर आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस को आप
जो उसको फॉलो करेंगे तो वही सारी आपकी सबकॉन्शियस में जो चीज़ें रजिस्टर होती हैं वही रिप्रोड्यूस होती हैं, वही आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। सर ने जो एक मेथड बताया, जब मैं पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था मेरी मेमोरी बड़ी पुअर थी, तो हमारे टाइम पे पीजी एंट्रेंस का टेस्ट शुरू हो गया। एमसीक्यू हमें किसी ने पढ़ा नहीं था कि सबसे पहले कोई गाइडेंस नहीं होती थी एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करना। तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, आप सबको ये काम आएगा कि जब हम एमसीक्यू तैयार करते हैं ना, तो हमारे इस फील्ड में लैटिन नेम्स की बहुत सिग्निफिकेंस है। वो आपको 4 चॉइसेस देंगे कि ये एक हर्ब है, इस 4 लैटिन नेम दे देंगे, आपको उसमें से एक ठीक पिक करना। ऐसा होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होता है हमारे फील्ड में। तो मेरे को लैटिन नेम याद नहीं होते थे, बड़ा मुश्किल लगता था। फिर लैटिन नेम, फिर फैमिली, फिर पर्याय, साइनोनियम्स एक एक हर्ब के 20-20, 25-25 पर्याय, उनको साइनोनियम्स याद रखने होते हैं। जैसे गिलोय का अमृता है ना, और बहुत सारे हैं ऐसे, और भी है छिन्न रुआ, ऐसे बहुत सारे जो कुछ कुछ मैं रिकॉल करता हूँ उस वक़्त के याद किए हुए। तो मैंने ये मेथड जो सर ने आज बताया वो मैंने फॉलो किया, मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया, अपने आप ही डेवलप हो गया। तो मैं क्या करता था कि 10 लैटिन नेम रोज़ लिखता था पेज पे, सामने उसका जो हिंदी नेम है वो लिख लेता था। वो लिख के मैं रात को उसको रट्टा लगा के सो जाता था। सुबह उठते सार सिराने के नीचे से वो कागज़ निकालना, वो पीछे वाले 10 क्रैम करने, आगे वाले 10 लिख लेने। तो हर रोज़ पीछे वाले 10 जरूर क्रैम करता था। तो सर ने उसको बड़ा रिफाइंड मेथड बताया, वो क्योंकि इन्होंने इसको बहुत लर्न किया, प्रैक्टिस किया, स्टडी किया, मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया। सो इसमें से ये आप जो सर ने बताया कि आप इस चीज़ को जो रिपीटिटिवली करेंगे वो दैट विल become the part of your long memory, right? So without any much delay, I will now humbly request our worthy Vice President Sir, Dr. Ramesh Arya, to come over on the chair and say some words about Sir and about this lecture. Thank you. आप आइए सर, आपको बोलना, मुझे बोलना इंक्लूड आपको करना है सर। आपने कहा कि मैंने कुछ नोट्स बना रहा हूँ, तो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरी मेमोरी को ठीक नहीं है। ऐसा है कि जब इस स्टेज पे खड़े होके मैंने कंक्लूड करना है तो 2-3 चीज़ें दिमाग में आती हैं कि आपका लेक्चर सुना, सबने सुना, टाइम लगाया, तो उसको मैं कैसे एनालाइज करता हूँ। एक तो लेक्चर, दूसरी ये कि उसका हम कब और किस तरह फ़ायदा उठाएंगे। आपकी प्रेजेंटेशन तो कमाल किया, ठीक है, कंटेंट तो उससे भी ज़्यादा है। उसकी यूटिलिटी कितनी है मैं उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ तारीफ़ ही नहीं करनी होती, करनी चाहिए वो, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी देखना होता है कि भी क्या चीज़ हमें और इसमें चाहिए थी। जो आपका वॉल्यूम आपने बताया ना इन चीज़ों का, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, मैं तो इसको कैरी नहीं कर सकता। मैं बाहर जाऊंगा तो 90% भूल जाऊंगा, ठीक है। तो आपका तो जो ज्ञान है और परफॉर्मेंस है और आप कंटेंट है आपके पास, वो तो मैजिकल है। जस्ट वन इन द वर्ल्ड, ये आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो सभी चीज़ें उन सीखने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, एक एक चीज़ को समझने के लिए टाइम चाहिए। तो मैं अगर स्टूडेंट हूँ, बैठा हूँ, है ही स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि भी इन किस्म के ऑडियंस के लिए ना कंटेंट छोटा होना चाहिए। 1-2 चीज़ें आप एक टाइम में बताइए, 10 बार आप बुलाओ इनको समझाने के लिए, लेकिन एक एक चीज़ जो प्रैक्टिकल है मेरे हिसाब से, जो शुड होता है ना, तो ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो करना चाहिए,
वो शुड को कहना बड़ा आसान होता है, सुनना बड़ा आसान होता है, पढ़ना बड़ा आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हम करेंगे नहीं तो आई डोंट थिंक उसकी यूटिलिटी उतनी होगी जितनी आप चाहते हैं। सो आप तो वन इन द वर्ल्ड है, वी आर मिलियंस इन द वर्ल्ड, तो उस चीज़ पे पहुंचना इज़ नॉट वेरी इजी। मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। मैं कंसल्टेंट डॉक्टर हूँ, फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। जो मैं स्टूडेंट्स को क्लिनिकल पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, तो माई वर्ड इज़ द लास्ट वर्ड, क्योंकि आई एम ए प्रोफेसर, आई एम द हेड, ठीक है ना। तो उसमें एक भी गलती जो है, इट कैन कॉस्ट द पेशेंट लाइफ, इट कैन कॉस्ट मी, ठीक है। तो हमें उस तरफ ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं अगर अपने आप को एनालाइज करके आपको बताऊं तो मुझे तो नाम तो बिल्कुल भूल जाते हैं। दिस आई कॉल नॉमिनल एफेजिया, बट इसमें एलोपैथी में एफेजिया बोलते हैं। नॉमिनल मीन नाम का। बड़ी कोशिश करता हूँ, एसोसिएट भी करता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, ठीक है। तरीका होगा इसका करने का, इस एरिया भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए। मरीज़ की हिस्ट्री, मरीज़ के एग्जामिनेशन की फाइंडिंग, मरीज़ को क्या दवाई दी है, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन, कभी नहीं भूलता, अभी भी नहीं भूलता। सेलेक्टिव मेमोरी रहती है। सो हर एक चीज़ को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है, तो इन चीज़ों के अंदर लगन के साथ करना पड़ता है, वो शुद्ध हो जाता है। हम में से कोई नहीं कर पाएगा आपकी तरह जो आपने किया है। एक आधी चीज़ हम कर सकते हैं। मुझे याद है ऐसा होता था कि मैं जब लेक्चरर था अर्ली उसमें, तो मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनके कमरे में मैं गया, थोड़ा बात करनी थी उनसे, तो वो अपनी मेज़ को थोड़ा साफ़ करने लगे, कागज़ वूगज़ सारे इधर ठीक करने लगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज आप बड़े सफाई सुई कर रहे हो, आपको क्या हो गया अपना? कहते नहीं रमेश मेरे पास आया ना, मेरी चीज़ ले जाएगा, अपनी छोड़ जाएगा, तो मैं चीज़ें संभाल रहा हूँ। तो मेरी वो खासियत थी, अब भी है, ठीक है ना। मतलब कहने का कि आपका जो जब हमने कंसंट्रेशन कही ना, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ आप करा सकते हैं, सब तरफ नहीं कर सकते। मैं तो ये समझता हूँ कि जब मैं आपके कंटेंट की तरफ देखता हूँ, उसकी यूटिलिटी की तरफ देखता हूँ, तो आई थिंक एक एक दो करके अगर आप चीज़ें कराएं तो हम वो कर पाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें एकदम नहीं कर पाएंगे। तो अब मेमोरी की जो इन्होंने ठीक कहा कि जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंस पढ़ने वाले साइंटिस्ट में कहता अपने आप को, मैं तो आपको एक मेडिकल सब्जेक्ट समझता हूँ, तो हम लोग वाकई प्रूफ मांगते हैं। जो भी चीज़ आप बताएंगे कि माइंड में ये है, तो वो जब तक मुझे माइंड की न्यूरॉन्स के न्यूरोलॉजी के कनेक्शन नहीं होंगे, मुझे नहीं समझ में आएगा, मुझे शक रहेगा, ठीक है। लेकिन माइंड तो डिसेक्शन करके देख ली सारी, कहीं है नहीं। और सोल की तरफ बातें करते हैं, सोल कहाँ है वो तो देखी नहीं किसी ने, ठीक है ना। ये ठीक है कि हम लोगों का माइंड जो है सोच जाता है। मैं जब आप लेक्चर दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मेमोरी के सेंटर कहाँ है ब्रेन में, हाउ डज मेमोरी वर्क साइंटिफिकली, एंड आई कैन एक्सप्लेन टू यू। देयर इज ए नॉलेज इन्फॉर्मेशन के ऐसे मेमोरी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन वो आपके उसमें तो नहीं होगी ना, तो आप तो उसको डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। देयरफॉर मेरे ख्याल में एक आधा आइटम लेके कि इस चीज़ को डेवलप करना है, थोड़ा सा आप हमें चांस दीजिएगा, साइंस वालों को थोड़ा आपको बताएंगे कि यह ऐसे होता है, आप बताएंगे तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा हो सकता है। मैं तो ये समझता हूँ इस चीज़ के बाद। बाकी वंडरफुल आपको देखना, आपके बारे में सुनना और आपके बोल को सुनना, आपके कंटेंट को सुनना इज़ परफेक्ट। बहुत अच्छा लगा, इट इज़ वेरी गुड, एंड आई थिंक मैनी ऑफ यू मस्ट बी अमेज्ड। मैं कहता हूँ, मैं तो आई एम अमेज्ड, इज़ नॉट जस्ट प्रशंसा नहीं, आई एम अमेज्ड एक्चुअली कि ऐसा भी इंसान हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका दोस्त वो अच्छा होगा जो आपको बताएगा यहाँ आपकी कमी है। तो मैं आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके समझाइए।
Thank you so much and God bless you. आयुर्वेद तो है ही रखेगा, मैं कह रहा हूँ आयुर्वेद तो है ही रखेगा, तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये बेनिफिशियल है ना? श्लोक है ऐसे ही याद होंगे भाई, फर्स्ट ईयर, न्यू फर्स्ट ईयर. ऐसे लिखा हुआ दिखना चाहिए श्लोक. हाँ नहीं मजाक की बात नहीं, सीरियसली श्लोक तो याद रखना ही पड़ेगा नंबर लेने तो. 80% तभी आएंगे. So how was the lecture? कितने लोगों ने कहा पसंद? Enjoyed, amazed. So बहुत सारी हमने टेक्निक सीखी. 2.2 सेकेंड टेक्निक सर ने बताया, रिव्यू टेक्निक बताई, इमेजिंग टेक्निक बताई, एंड दे टॉट अस हाउ टू एडवांस द मेमोरी. तो कहते हो ना कि श्लोक याद नहीं होते, ये याद नहीं होता, वो नहीं होता, तो हो जाएगा धीरे धीरे. चलो, आवर थिंग वॉज दैट टू मोटिवेट यू that you have the memory skill which will help you in the examination strategies. Okay, so with this we come to the end of today's session, and tomorrow morning, not tomorrow morning, now Monday. Okay, Monday morning we'll come back with the same thing at 9 o'clock. So please be on time. Thank you so much. हाँ जी बेटा, 1